अच्छा जी, तो आज के इस सेशन में खुशामदीद all of you. uh, a very warm welcome to all of you to this session on Facebook Live. Today's session will be, as I mentioned, very, very crucial and very, very important with regards to the IBA admission test. I'll start off with my introduction. My name is Irfan Ghaffar. I am a director and a master trainer at Anis Hussain Educational Institutes. I've been preparing students for various local and international admission tests since the year 2000. I did my O levels back in the year 98 and my A levels in 2000. After that, I joined IBA to pursue my BBA in marketing. I completed my BBA in December 2003 and my MBA marketing in December 2004. During my tenure at IBA, I was also the head of the students' body over there. I've been teaching students for various local and international university admission tests since the year 2000. I started teaching as soon as I joined IBA, so it's been a 24-year journey since then, alhamdulillah. My area of expertise is preparing students for local business universities, including IBA, LUMS, CBM, and Zabist, and international tests, including the SAT-1, the SAT-2, the GMAT, and the GRE. I've also worked in the corporate sector, initially at PSO. I was initially working at PSO in their cards division, and then I switched over to Habib Bank in their corporate banking department. So this is a brief introduction of what I've been doing for the past 24 years. Now, as I mentioned, today's session is going to focus on the round 1 2024 admission test. I will be breaking down today's session into two parts. The first part will be a very quick overview on how to tackle the IB admission test. आप में से बहुत सारे students ऐसे हैं जब वो admission test देने के लिए बैठते हैं, they mess up a few crucial techniques, they mess up a few crucial areas, and that is why they are not able to perform very well on the IB admission test. So we'll be discussing tips on how to tackle the IB admission test itself. And then the major part of today's session will be a category-wise discussion of actual IBA past paper questions. What I've done is I've analyzed the 2022 IBA past paper, both rounds, round 1 and round 2, and I've taken out questions uh, belonging to 5 broad categories. और उन पांचों कैटेगरीज में मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6-7 सैम्पल क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, and these will give you a very good idea of what the actual IBA questions look like and how you can attempt them in the prescribed time frame. Keep in mind कि IBA के मैथ सेक्शन में approximately 45 questions होते हैं. On 45 questions को attempt करने के लिए आपके पास approximately 70 to 80 minutes का time frame होता है, which means आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि एक सवाल के लिए आपके पास roughly 90 seconds यानी कि 1.5 मिनट होगा. So what we will be targeting is कि हम अगर इस क्वेश्चन को पेपर में देखते हैं तो क्या हम इस क्वेश्चन को विद इन दोज 90 सेकेंड्स या प्रेफरेबली विद इन अ 60 सेकेंड टाइम फ्रेम अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी. All right, so let's start off with the first session, the first part of today's session. The first part is general tips on how to tackle the IBA admission test. सबसे पहली टिप यह है कि जब स्टूडेंट्स टेस्ट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो या वो इंग्लिश का सेक्शन हो, तो व्हाट दे डू इज वो क्वेश्चंस को उस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस उनके सामने आ रहे होते हैं. Now that's something which is not advisable. मैं आपको एडवाइज ये करूंगा, जब आपको IBA का पेपर हाथ में मिलेगा, you will have about 5 to 10 minutes initially to read the instructions. So I would advise you to read the instructions very very carefully. जब आप लोगों ने instructions पढ़ लिए और जब पहले सेक्शन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो मैथ का सेक्शन हो चाहे वो वर्बल का सेक्शन हो, यू विल नो कि भाई इस सेक्शन में इतने क्वेश्चंस हैं और इतना टाइम फ्रेम है. I would strongly advise कि सबसे पहला काम आप ये करें कि you spend the first one minute
स्कैनिंग थ्रू द पेपर, एक क्विक ओवरव्यू देख लें कि यार कौन से क्वेश्चंस कहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम इंग्लिश का पोर्शन स्कैन कर रहे हो तो यू कैन हैव अ लुक के वोकैबुलरी के सवाल कहाँ दिए हुए हैं, शुरू में है, एंड में है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ दिए हुए हैं, कितने सवाल हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, कितने सवाल हैं पोम्स के, डू यू हैव एनी ग्रामर इन द टेस्ट, डू यू हैव एनी सेंटेंस कंप्लीशन इन द टेस्ट। तो पहला 1 मिनट स्कैन कर लो उस पर्टिकुलर सेक्शन को। सिमिलरली जब मैथ का सेक्शन स्टार्ट होगा तो पहले 1 मिनट उसको भी स्कैन कर लो। उस स्कैनिंग का एडवांटेज ये होगा कि यू विल नो कि भाई कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे लाए करते हैं। Now once you start attempting those questions, it is very very strongly advisable to attempt the easy and the quick questions first. कुछ questions ऐसे होंगे जो शायद तुम्हें देखने में आसान लग रहे होंगे बट तुम्हें लगेगा कि यार इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा बिकॉज उसमें वर्किंग लेंथी है। सो स्किप दोज क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो तुम्हें लगता है कि 60 सेकेंड्स टाइम फ्रेम में हो सकते हैं या मैक्सिमम 90 सेकेंड्स टाइम फ्रेम में हो सकते हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करो। रिमेंबर व्हेन द एग्जामिनर इज मेकिंग द टेस्ट, तो वो टेस्ट बनाते हुए एक बैलेंस ऑफ इजी, मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस टेस्ट में डालता है। हालांकि हर दफ़ा वो बैलेंस बहुत स्ट्रांगली मेंटेन नहीं होता। कभी कभार हार्ड क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, कभी कभार इजी क्वेश्चंस का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। बट हर पेपर में इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। सो जहन में ये रखो कि अगर अगर उन 45 to 50 मैथ क्वेश्चंस में 10 से 15 सवाल ऐसे हैं जिसको तुम इजी कैटेगराइज कर सकते हो और 10 से 15 सवाल ऐसे हैं जिसको तुम मीडियम कैटेगराइज कर सकते हो, तो वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें पहले करने हैं। इजी क्वेश्चंस, क्विक क्वेश्चंस एंड मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, जो सारे के सारे तुम 90 सेकेंड्स में कर सकते हो। अगर तुम वो वाले क्वेश्चंस आइसोलेट करके पहले 20 मिनट में 15 से 20 सवाल सही कर लो तो ऑटोमेटिकली यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेड स्टार्ट, and automatically your morale and your confidence will go up for the remainder of the test. So make sure कि तुम जो है वो शुरू में आसान वाले questions करो, क्विक वाले questions करो। Moving forward, make sure you pace yourself throughout the test, यानी कि हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद तुम्हारे कुछ milestone होना चाहिए कि यार every 5 minutes I should be able to do 3 questions, या every minute I should be every 90 seconds I should be able to do 1 question। ये पेसिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कभी कभार होता ही है कि एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल डाले जाते हैं विच आर डिजाइंड टू वेस्ट योर टाइम, जैसे हम टाइम सकर्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट आगे भी आएगा। सो टाइम सकर्स वो क्वेश्चंस हैं जिसमें कैलकुलेशन करते हुए शायद तुम्हारे 2, ढाई, 3 मिनट भी बर्बाद हो सकते हैं, और वो टाइम जो तुम उस सवाल में ज़ाया कर रहे हो उसकी जगह तुम 2 या 3 इजी और क्विक क्वेश्चंस कर सकते हो। रिमेंबर ईच क्वेश्चन ड्यूरिंग इन द आईबीए टेस्ट अकाउंट्स फॉर 4 मार्क्स। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पेसिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम टाइम सकर्स को अवॉइड कर सको और इजी क्वेश्चंस को पहले कर सको। अच्छा, टाइमिंग के लिए इट इज़ एडवाइजेबल, वैसे तो तुम घड़ी पहन के जा सकते हो या स्मार्ट वॉच पहन के जा सकते हो, ऑल्दो आईबीए विल नॉट अलाउ एनीथिंग विच हैज़ सेल फोन फंक्शनैलिटी। तो तुम्हारा सेल फोन अलाउड नहीं होगा। अगर तुम्हारी स्मार्ट वॉच में कोई फ़ोन रिसीविंग कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो अलाउड नहीं होगी। सो या तो तुम नॉर्मल वॉच लेके जाओगे या तुम अपने साथ चाहो तो एक स्टॉप वॉच भी लेके जा सकते हो। दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, यू कैन टाइम योर सेल्फ एवरी 5 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स, यू कैन मेक श्योर दैट यू आर पेसिंग योर सेल्फ। ठीक है जी। ये बहुत आइडियल मौका है कि आप अपने छोटे भाई की जो स्टॉप वॉच वाली घड़ी है वो उससे एक दिन के लिए रेंट पे ले लें, बोरो कर लें, और उसको उसका बेस्ट यूज कर लें आप। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, टाइम सकर्स आपने अवॉइड करने हैं, यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें 2 से 3 मिनट आप ज़ाया कर सकते हैं या शायद उससे भी ज़्यादा टाइम ज़ाया कर सकते हैं, जिसमें लंबी लंबी कैलकुलेशंस हैं, वो अवॉइड करनी है। यहाँ पे एक सवाल उठता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं भाई जनरली पेपर में कितने टाइम सकर्स आते हैं। तो अगर तुम्हारे मैथ के पोर्शन में 45 क्वेश्चंस हैं तो तुम एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 टाइम सकर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लासेस में रेगुलर बेसिस पर बताया है कि भाई 45 क्वेश्चंस में से 45 या 44 या 43 सही करना ज़रूरी नहीं है टेस्ट पास करने के लिए। इनफैक्ट अगर तुम अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चंस सही कर लो तो यू आर गोइंग टू एंड अप विद अ वेरी गुड स्कोर ऑन द मैथ पोर्शन। द हायर द बेटर, ऑब्वियसली अगर तुम 35 की जगह 36 कर लो, 37 कर लो, द हायर द better. But generally, if you get anywhere between 30 to 35 questions correct on the math portion, you have a very good math score. ठीक है, सो आपके पास 10, 12, 15 सवालों का मार्जिन होता है, तो वो क्वेश्चंस आप स्किप कर दें, कंप्लीटली स्किप नहीं करेंगे, एंड के लिए छोड़ देंगे।
अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं या वो स्लो जा रहे होते हैं, उनके एंड में 5 6 7 क्वेश्चंस छूट जाते हैं। प्लीज रिमेंबर, वैसे तो आइडियली आप अपने आप को पेस कर रहे होंगे ताकि क्वेश्चंस ना छूटें, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है या टाइम शॉर्ट है या कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं आता, तो मेक श्योर आप उसका आंसर मार्क करें, बिकॉज बिकॉज आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि आईबीए के पेपर में अब जो है वो नेगेटिव मार्किंग खत्म हो चुकी है। एंड चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप अगर कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आप अपने आप को एक डिसएडवांटेज पर डाल रहे हैं। उससे बेहतर है कि आप एक एजुकेटेड गैस कर लें। एजुकेटेड गैस से मुराद ये है कि आप एक पढ़ा लिखा तुक्का लगाएंगे। पढ़ा लिखा तुक्का ऐसे लगाते हैं कि आपके जो ऑप्शंस क्लियरली इनकरेक्ट हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ये वाले ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, उनको एलिमिनेट कर देंगे। तो 4 में से अगर आपने एक या 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए तो बाकी जो 2 ऑप्शंस बच जाएंगे उसमें आप गैस लगाएंगे। दैट्स व्हाट यू कॉल एन एजुकेटेड गैस। आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे। जो ऑप्शंस आपको इनकरेक्ट लग रहे हैं, जो ऑप्शंस आपको लग रहा है कि प्लग बैक करने से काम नहीं कर रहे, वो स्किप करके आप बाकी क्वेश्चंस में से एक एक गैस लगा देंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स सारे सवालों को रेगुलर अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को रेगुलर अप्रोच से करें, बट कुछ केसेस में या तो रेगुलर अप्रोच आपको क्लिक नहीं करेगी एग्जाम में, या रेगुलर अप्रोच लेंदी होगी। जैसे कि हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है, मेक श्योर कि आप बैकडोर अप्रोचेस को इस्तेमाल करें। बैकडोर अप्रोचेस से मुराद वो क्वेश्चंस हैं, वो अप्रोच है जो जिसकी बेसिस पे आप शायद टाइम सेव कर सकें। वो जुगाड़े हैं जिसकी बेसिस पे आप डायरेक्टली आंसर पे आ सकें। फॉर एग्जांपल, आंसर ऑप्शंस को प्लग बैक करके चेक करना, या वेरिएबल्स की जगह नाइस नंबर सपोज कर लेना, या चैलेंजिंग नंबर्स की जगह राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट नंबर सपोज कर लेना, ये सारी की सारी आपकी बैकडोर अप्रोचेस में शामिल है। और सबसे आखिरी बात, टेस्ट देते हुए इम्पॉर्टेंट ये है कि जी आपने पैनिक नहीं करना है, आपने स्ट्रेस नहीं करना है। एंड होपफुली अगर आप अपने आप को पेस कर रहे होंगे और इजी क्वेश्चंस पहले कर रहे होंगे और शुरू के 15 20 मिनट में आप 12 से 15 सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे, तो होपफुली दैट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोरल बूस्टर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अब मैंने 2022 के आईबीए पास्ट पेपर को एनालाइज किया है, दोनों राउंड्स को, राउंड 1 एंड राउंड 2। और उन दोनों राउंड्स में से मैंने वो क्वेश्चंस निकाले हैं जिसमें मुझे लगता है कि भाई स्टूडेंट्स कॉमनली फंसते हैं या वो लंबे तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। और उन क्वेश्चंस को फिर मैंने कैटेगरी वाइज ब्रेक कर दिया है आप लोगों के लिए। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें ये देखना है कि आईबीए में किस तरह के सवाल आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमें ये समझना है कि उन सवालों को टैकल कैसे किया जाएगा। सो मैंने उन सवालों को कैटेगरी वाइज आपके लिए सॉर्ट कर दिया है, और उन सवालों को हम अटेम्प्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि उनके शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड्स फिगर आउट कर सकें। ऑल राइट, सो वी स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहला सवाल जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में डाला है, दैट दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट यू सी ऑन द आईबीए टेस्ट। मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं ये सवाल डिस्कस करूं तो मैं आपके साथ आपके साथ जो है वो इसकी फर्दर सब कैटेगरी भी क्लेरिफाई कर दूं, ताकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वो सब कैटेगरी पे फोकस कर सकें। सो ये पर्टिकुलर सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। एंड आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस इज अ वेरी वेरी कॉमन एरिया ऑन द आईबीए टेस्ट। ठीक है जी। सो रेशियो प्रोपोर्शंस का सवाल है, इसमें गिवन है 7 spiders make 7 webs in 7 days, then one spider will make one web in how many days? ठीक है जी। सो रेशियो प्रोपोर्शंस का सवाल है और इसमें 3 कैटेगरीज आपस में कंपेयर हो रही हैं, स्पाइडर्स, वेब्स एंड डेज। अच्छा, हल्का सा ट्रिक क्वेश्चन भी है, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ ये करते हैं कि वो कहते हैं अच्छा यार 7 spiders हैं, 7 webs हैं, 7 days हैं। 1 spider है, 1 web है, सो ही इज गोइंग टू टेक 1 day। 7 7 7 1 1 1। आंसर ए है, दैट्स व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स डू, बट ये आंसर इनकरेक्ट है। इट्स ए इज द इनकरेक्ट आंसर। अच्छा, इस सवाल को करने के मल्टीपल तरीके हैं। मैं आपको इस वक्त जो क्विकेस्ट पॉसिबल मेथड है वो करवा देता हूँ। ठीक है जी। सो यू हैव 7 spiders and they can do a particular job. Job क्या है इस केस में? They are making 7 webs. 7 spiders can make 7 webs in 7 days.
ठीक है जी। देन वन स्पाइडर विल मेक वन वेब इन हाउ मैनी डेज, ये तुम्हारा अननोन है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सवाल किस तरह से सॉल्व करेंगे? इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब भी तीन रेशो का सवाल आ जाए और वो तीनों रेशोज आप ब्रेक डाउन कर सकें मैन, वर्क एंड टाइम की कैटेगरीज में, तो आप सिंपली ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज M1T1W2 is equal to M2T2W1. Remember, M stands for men and T stands for time and W over here stands for work. ठीक है, सो आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, M1T1W2 इक्वल्स टू M2T2W1। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें मैन, टाइम और वर्क की कैटेगरीज हैं या नहीं। सो स्पाइडर्स को आप मैन सपोज कर लेंगे, डेज को आप टाइम सपोज कर लेंगे, और वेब्स को आप वर्क सपोज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऐसे करना है, M1 का क्या मतलब है? M1 का मतलब है मैन वाली कैटेगरी में जो पहला नंबर है वो। सो M1 इस केस में तुम्हारा हो जाएगा 7। T1 का क्या मतलब है? टाइम वाली कैटेगरी में जो पहला नंबर है, तो T1 हो जाएगा 7। और W2 का क्या मतलब है? वर्क वाली कैटेगरी में जो दूसरा नंबर है, वर्क वाली कैटेगरी में जो दूसरा नंबर है, दैट इज 1। सो M1, T1 एंड W2। M1 की जगह आपने लिख दिया 7, T1 की जगह आपने लिख दिया 7, और W2 की जगह आपने लिख दिया 1। ठीक है, इज इक्वल टू M2T2W1। अब जो बाकी तीन नंबर्स बच गए उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो बाकी तीन नंबर्स बच गए 1, 7 एंड X। इन तीनों को राइट हैंड साइड पे ले जाओ। इस इक्वेशन में एक ही अननोन है तुम्हारा X। व्हाट डू यू डू? यू टेक एवरीथिंग एल्स टू द अदर साइड। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी 7, which means your correct answer has to be option C। ठीक है गाइस, सो मैंने पहला सवाल करा दिया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है आईबीए के पेपर्स में। यूजुअली तुम्हें हर ईयर, हर राउंड में 2 से 3 सवाल रेशियो प्रोपोर्शंस के मिलेंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन टॉपिक। अच्छा जी, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, ये क्वेश्चन जब 2022 में आया था तो मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि काफ़ी स्टूडेंट पेपर के बाद जब हमारे पास आते हैं पेपर को रिक्रिएट करने के लिए भी और मुलाकात करने के लिए भी, तो बड़ा परेशान थे कि भाई ये बड़ा ही मुश्किल कोई सवाल आ गया था सुपरमार्केट और ट्रॉलीज के हवाले से। सो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है? इन अ सुपरमार्केट देयर आर टू लाइंस ऑफ टाइटली पैक्ड ट्रॉलीज। द फर्स्ट लाइन हैज 10 ट्रॉलीज एंड इज 2.9 meters लॉन्ग। ठीक है जी। The second line has 20 trolleys and is 4.9 meters long. What is the length of one trolley in meters? तो तुम्हें बेसिकली एक ट्रॉली की लेंथ निकालनी है इन मीटर्स। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे तुम? इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ये है कि ये जो ट्रॉलीज है ना, इसमें तुमने सिंपली करना ये है कि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि भाई अगर 10 ट्रॉलीज हैं तो उन 10 ट्रॉलीज का जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ है मिला के, वो स्टैक हुई हुई है एक साथ, और उनकी जो टोटल लेंथ है दैट्स 2.9 meters लॉन्ग। अच्छा, अब करना सिंपली ये है तुम्हें कि ये जो पहली ट्रॉली है, पहली ट्रॉली का जो ये वाला पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन, ठीक है, अगर मैं सिर्फ पहली ट्रॉली को यहाँ पे सेपरेट करके तुम्हें दिखाऊं, सो पहली ट्रॉली को हम ब्रेक कर देते हैं भाई फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, ये पहली ट्रॉली की टोटल लेंथ है, और ये लेंथ को हम ब्रेक कर देते हैं भाई, इसमें ये पोर्शन x ले लेते हैं फ्रॉम हियर टू हियर, और ये पोर्शन y ले लेते हैं। ठीक है, सो जो ट्रॉली का बैक वाला पोर्शन है जिसको तुम पुश करने के लिए यूज करते हो, उसकी लेंथ मैंने y ले ली, और जो फ्रंट वाला पोर्शन है जिसमें ट्रॉली में तुम सामान लोड करते हो, उसकी लेंथ मैंने x ले ली। ठीक है, सो पहली ट्रॉली की टोटल टोटल लेंथ आ गई x प्लस वाई। x फ्रंट वाले पोर्शन की लेंथ है और y बैक वाले पोर्शन की लेंथ है। सेकेंड ट्रॉली
जो इसमें स्टैक वी वी है उसके अंदर सिर्फ इतना वाई ऐड हो रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ सिर्फ वाई है, बाकी सारी लेंथ तो वो अंदर चली गई है, ठीक है। थर्ड ट्रॉली जो इसके अंदर स्टैक वी वी है उसका भी सिर्फ ये वाई वाला पोर्शन एक्सपोज्ड है, बाकी पोर्शन तो अंदर चला गया है, ठीक है जी। फोर्थ ट्रॉली जो स्टैक वी वी है उसका भी सिर्फ वाई वाला पोर्शन है और बाकी पोर्शन अंदर चला गया, ठीक है। सो बेसिकली जो फर्स्ट ट्रॉली उसका जो पोर्शन नजर आ रहा है, जो लेंथ है वो है एक्स प्लस वाई। लेकिन जो बाकी ट्रॉलीज हैं सेकेंड ट्रॉली ऑनवर्ड्स, उनका जो विजिबल पोर्शन है सेकेंड ट्रॉली ऑनवर्ड्स, उनका जो विजिबल पोर्शन है दैट इज ओनली वाई, ठीक है जी। एक्स वाला पोर्शन जो है वो विजिबल नहीं है बिकॉज वो अंदर स्टैक हो गया। ऑल राइट, सो अब आप क्या करेंगे, अब आपको जब 10 ट्रॉलीज गिवन है तो 10 ट्रॉलीज में पहली ट्रॉली का एक्स वाला पोर्शन भी विजिबल है और वाई वाला पोर्शन भी विजिबल है, और बाकी 9 ट्रॉलीज का सिर्फ वाई वाला पोर्शन। पहली ट्रॉली का एक्स वाला पोर्शन भी विजिबल है और वाई वाला पोर्शन भी विजिबल है, और बाकी 9 ट्रॉलीज का सिर्फ वाई वाला पोर्शन विजिबल है, ठीक है। सो एक्स वाई प्लस 9 वाई ये मिला के जो 10 ट्रॉलीज की टोटल लेंथ आ रही है दैट्स 2.9 मीटर्स। तो यहाँ पे तुम्हारी इक्वेशन बन गई एक्स प्लस 10 वाई equals to 2.9 meters. This is your first equation. ठीक है गाइज। सिमिलरली अब 20 ट्रॉलीज के तुम्हारे बारे में बताया हुआ है कि जब 20 ट्रॉलीज तुम स्टैक करोगे तो 20 ट्रॉलीज में वंस अगेन जो सबसे पहली वाली ट्रॉली होगी फर्स्ट ट्रॉली उसका x प्लस वाई पोर्शन विजिबल होगा, और जो बाकी 19 ट्रॉलीज होंगी उनका सिर्फ y वाला पोर्शन विजिबल होगा, और वो मिला के तुम्हें लेंथ दी हुई है 4.9 मीटर्स। यानी कि ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी गाइस x प्लस 20y is equal to 4.9 meters. So now you have two simultaneous equations and you have two unknowns. जब तुम इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करोगे तो तुम्हारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। Let's quickly solve both of these equations. I'll move on to the next screen. x प्लस 10y तुम निकाल चुके हो 2.9, और x प्लस 20y तुम निकाल चुके हो 4.9। ये दो इक्वेशंस तुम्हें गिवन थी, ठीक है। तुम क्या करोगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, सेकेंड इक्वेशन को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, x and minus x cancels out, 10y minus 20y becomes negative 10y, 2.9 minus 4.9 becomes negative 2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2/10 दैट इज 0.2। जब y की वैल्यू आ गई 0.2 तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम x की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन में प्लग बैक कर दोगे, x प्लस 10 इंटू 0.2 इज 2.9, इसको 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, राइट साइड पर माइनस करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 0.9। सो y की वैल्यू आ गई 0.2, y is 0.2 and x is 0.9। अब तुमसे कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन ट्रॉली, और जो वन ट्रॉली है वो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इतना पोर्शन उसका x है और इतना पोर्शन उसका y है। सो ये पोर्शन 0.9 है, ये पोर्शन 0.2 है, तो ट्रॉली की टोटल लेंथ हो जाएगी 0.9 प्लस 0.2 दैट्स गोइंग टू बी 1.1, यानी कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा C। I hope this is clear to all of you guys. Let me know whatever feedback you have. आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस कैटेगरी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की जो कैटेगरी मैंने अभी सॉल्व कराया, इसकी कैटेगरी थी एल्जेब्रा वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हो तुम इसे, या मोर स्पेसिफिकली तुम उसको कह सकते हो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो दो इक्वेशंस बनाओगे, उनको सॉल्व करोगे, और काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं बिकॉज वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना नहीं पाते। सो एवरीबडी नोज कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है, बट अगर उसका वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के समझ के इक्वेशन कैसे बनानी है, दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट, दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल मेस अप, ठीक है।
अच्छा आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ऑन बाइंग ए टेलीविजन ऑन कैश अ कस्टमर गेट्स एन 8% डिस्काउंट। However, if the television is purchased on installments, the customer must pay 10% extra as interest. So एक काम करते हैं, अगर टेलीविजन की ओरिजिनल प्राइस जो कि अननोन है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेलीविजन ऑफ द टेलीविजन, इसको हम सपोज कर लेते हैं रुपीज एक्स, ठीक है। द ओरिजिनल प्राइस इज रुपीज एक्स। सो जब तुम कैश पे बाय करोगे, कैश पे तुम्हें 8% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर तुम्हें 8% डिस्काउंट मिल जाएगा तो 100% ऑफ एक्स में से 8% एक्स माइनस कर दोगे, दैट्स योर डिस्काउंट। तो तुम्हारी कैश की प्राइस हो जाएगी 92% एक्स। 92% कैसे आया? 100% माइनस 8%, ये कैश वाली प्राइस आ गई। सिमिलरली अगर तुम इसी प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदते हो, इफ यू परचेज इट ऑन इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट्स वाली जो प्राइस है, इंस्टॉलमेंट्स वाली जो प्राइस है, दैट इज गोइंग टू बी 10% एक्स्ट्रा देन दी ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस है एक्स, यानी कि 100% एक्स, उसमें 10% एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो इंस्टॉलमेंट वाली प्राइस हो गई 110% एक्स। सो बॉटम लाइन क्या है कि कैश प्राइस ओरिजिनल प्राइस के मुकाबले में 8% कम है, और इंस्टॉलमेंट वाली प्राइस ओरिजिनल प्राइस के मुकाबले में 10% ज्यादा है। और इन दोनों प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें बताया हुआ है ₹2718। ठीक है, कौन सी दोनों प्राइसेस का डिफरेंस? लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। कैश प्राइस का डिफरेंस और इंस्टॉलमेंट्स वाली प्राइस का डिफरेंस, इन दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंस है, कैश वाली प्राइस का डिफरेंस और इंस्टॉलमेंट वाली प्राइस का डिफरेंस, ये डिफरेंस हमें बताया हुआ है ₹2718। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, वैसे तो हमें नजर आ रहा है कि 110% और 92% का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो आएगा 18% ऑफ एक्स। और इस डिफरेंस की वैल्यू मुझे बताई हुई है ₹2718। तो मेरी इक्वेशन बन गई गाइज 18 अपॉन 100%, का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 18 अपॉन 100x इज इक्वल टू 2718। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं कि भाई बहुत एक्सट्रीमली इजी नंबर्स नहीं है, यू विल हैव टू कैलकुलेट। सो पहले तुम क्या करो, या तो पहले तुम 2 के टेबल में कैंसिल कर लो, या पहले तुम 9 के टेबल में कैंसिल कर लो। इफ आई कैंसिल 9 के टेबल में, तो 9 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 3 इज 27, एंड 9 टाइम्स 02 इज 18। फिर मजीद कैंसिलेशन करेंगे, 302 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 151। 151 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 के आगे 2 जीरोस लग जाएंगे, यानी कि 15,100 इज द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है जी। सो ये पर्टिकुलर सवाल आपका परसेंटेजेस की कैटेगरी में आएगा। एक सवाल मैंने आपको रेशियोज का करा दिया, एक सवाल मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस का करा दिया, और एक सवाल मैंने आपको परसेंटेजेस का करा दिया। अच्छा जी, अगली कैटेगरी देखते हैं। A painter will paint n walls with the same size and shape in a building using a specific brand of paint. The painter's fee can be calculated by the expression NKAH, where N is the number of walls, K is a constant unit, is a constant with units of dollars per square foot, A is the length of each wall in feet, and H is the height of each wall in feet. If the customer asks the painter to use a more expensive brand of paint, which of the factors in the expression would change? अच्छा, अब ये सवाल देखने में काफी लंबा सवाल लग रहा है, and if you don't pay attention, if you lose focus somewhere in between, तो ऑटोमेटिकली आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा यार डेटा बहुत ज्यादा है। बट अगर मैं इस सवाल को ब्रेक डाउन करूं, तो सवाल में मुझे सेकंड लाइन में या सेकंड सेंटेंस में क्लियरली बताया हुआ है कि द पेंटर्स फी, जो पेंटर की फी है, दैट इज दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन NKAH। ठीक है, तो जो पेंटर की फी है वो इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हो सकती है। सो द पेंटर्स फी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग n with
K with A with H, ये चारों मल्टीप्लाई करके पेंटर की फी कैलकुलेट हो रही है। इसमें N क्या है हमें क्लियरली बताया हुआ है, N इज द नंबर ऑफ वॉल्स। ठीक है जी, N इज द नंबर ऑफ वॉल्स। और K क्या है, K इज अ कांस्टेंट विथ यूनिट्स ऑफ डॉलर्स पर स्क्वायर फुट। ठीक है, तो K जो है कांस्टेंट है इन डॉलर्स पर स्क्वायर फुट, इट्स अ कांस्टेंट इन डॉलर्स पर स्क्वायर फुट। अच्छा जी, A क्या है, A is the length of each wall in feet. It's the length of each wall in feet. और H क्या है, H is the height of each wall in feet. और क्वेश्चन तुम्हें क्या बता रहा है, क्वेश्चन तुम्हें ये बता रहा है भाई कि अगर जो कस्टमर है, वो कस्टमर अगर ये कह दे कि भाई महंगा वाला पेंट इस्तेमाल करो, यूज अ मोर एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ पेंट, तो इन चारों में से NKAH में से कौन सी चीज चेंज होगी। अगर तुम्हें ये सवाल कंफ्यूजिंग लग रहा है, वैसे तो ये सवाल काफी इजी है, लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। अच्छा भाई, एलिमिनेशन कैसे करेंगे, अगर अगर जो है वो कस्टमर कह रहा है कि ज्यादा महंगा पेंट यूज करो, तो उससे नंबर ऑफ वॉल्स एन पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नंबर ऑफ वॉल्स तो उतनी ही रहेंगी। सो एन डज नॉट चेंज, तो कौन कौन सा ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा, वो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अगर आप महंगा वाला पेंट यूज करेंगे तो नंबर ऑफ वॉल्स तो चेंज नहीं होंगी, लेंथ ऑफ ईच वॉल ये भी चेंज नहीं होगी, हाइट ऑफ ईच वॉल ये भी चेंज नहीं होगी, जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं पर स्क्वायर फुट, डॉलर्स पर स्क्वायर फुट, वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज पहले जो आप पेंट खरीद रहे थे वो कम डॉलर्स का होगा पर स्क्वायर फुट, बाद में जो पेंट खरीदेंगे मोर एक्सपेंसिव, वो ज्यादा डॉलर्स का होगा पर स्क्वायर फुट। सो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ दीज फोर वेरिएबल्स के इज गोइंग टू गो अप। तुमसे वो यही पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज फैक्टर्स will change or which of these factors will go up. So K is going to change. ठीक है गाइज, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, 48 children went on a picnic. 6 had one sibling each, 9 had two siblings each, 4 had three siblings each, and the rest had no sibling. How many families went on the picnic? अच्छा ये सवाल देखने में काफी हार्मलेस लग रहा है, बट दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसको स्टूडेंट एग्जाम में मैसअप करते हैं। जानबूझ के मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है आज की डिस्कशन में, बिकॉज इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए पहले तो मैं तुम्हें एक बेसिक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। एक काम करते हैं, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो एक छोटी सी टेबल बना ली, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि ये टेबल को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तीन चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बता रहा है कि भाई 48 चिल्ड्रन पिकनिक पे गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 48 होने चाहिए, प्लीज कीप दैट इन माइंड। 6 बच्चे ऐसे थे जिनका वन सिबलिंग था। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई 6 फैमिलीज ऐसी थी, 6 फैमिलीज ऐसी थी जिनका एक एक बच्चा था। दैट्स रॉन्ग, ये नहीं लिखा हुआ कि 6 फैमिलीज का एक एक बच्चा था। इनफैक्ट वो तुमसे कह रहे हैं 6 बच्चे ऐसे थे, 6 चिल्ड्रन ऐसे थे जिनका वन सिबलिंग ईच था। अच्छा, दूसरी जो गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो कहते हैं अच्छा यार 6 बच्चे थे और उन सबका एक एक सिबलिंग था, सिबलिंग मींस ब्रदर और सिस्टर, तो एक एक सिबलिंग था, यानी कि हर एक का एक एक सिबलिंग था, तो यानी कि वो फैमिली ऑफ 2 हो गई। और वो फैमिली ऑफ 2 हो गई तो वो 12 बच्चे हो गए। वंस अगेन दैट्स इनकरेक्ट। सो समझने की बात क्या है कि अगर 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका वन सिबलिंग ईच है, तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं तुम्हारे सामने ये 6 बच्चे लिख दूं, A B C D E F, ये 6 बच्चे ऐसे हैं
जिनका वन सिबलिंग ईच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी सेम फैमिली में। क्यों? क्योंकि ए का वन सिबलिंग है बी और बी का वन सिबलिंग है ए। सो ए और बी एक फैमिली में। सिमिलरली सी और डी वो भी एक फैमिली में। तो सी का एक सिबलिंग है डी और डी का एक सिबलिंग है सी। सिमिलरली ई एंड एफ आर ऑल्सो इन वन फैमिली। ई का एक सिबलिंग है एफ एंड एफ का एक सिबलिंग है ई। सो बॉटम लाइन ये है कि अगर 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक सिबलिंग ईच है, वन सिबलिंग ईच, तो ये 3 फैमिलीज की बात हो रही है जिनके दो दो बच्चे हैं। घुमा फिरा के तुम्हें क्वेश्चन ये बता रहा है कि भाई 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके दो दो बच्चे हैं, तो हर बच्चे का एक सिबलिंग हुआ और टोटल नंबर ऑफ किड्स हो गए 6। सो लेट्स गो बैक एंड पुट दिस इंफॉर्मेशन इन द टेबल। 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके दो दो बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ किड्स इनके हो गए 6। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब दिया हुआ है 9 चिल्ड्रन हैड 2 सिबलिंग्स ईच। 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके टू टू सिबलिंग्स थे। सो 9 बच्चे लेबल कर दें जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके दो दो सिबलिंग्स थे। तो दो सिबलिंग का मतलब ये है कि अगर उस बच्चे को भी गिन लिया जाए तो एक्चुअली 3 लोगों की फैमिली है। अगर 3 लोगों की फैमिली है तो 3 लोगों की 3 फैमिलीज होंगी, तब जाके 9 बच्चे होंगे। ठीक है, 3 लोगों की 3 फैमिलीज होंगी। किस तरह से? ए को अगर आप देखें तो ए के 2 सिबलिंग्स हैं बी एंड सी। बी को अगर आप देखें तो बी के 2 सिबलिंग्स हैं ए एंड सी। और सी को अगर आप देखें तो उसके भी 2 सिबलिंग्स हैं ए एंड बी। सो ये एक फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स है जिसमें हर बच्चे के 2 सिबलिंग्स हैं। ठीक है। सो अब ये टोटल कितनी फैमिलीज हो गई? 3 फैमिलीज हो गई। हर फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, टोटल 9 चिल्ड्रन हो गए। सो 3 फैमिलीज, ईच फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 9। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। 4 चिल्ड्रन हैड 3 सिबलिंग्स ईच। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके तीन तीन सिबलिंग्स हैं। अच्छा, अगर 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके तीन तीन सिबलिंग्स हैं तो ये चारों बच्चे एक ही फैमिली के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये चारों एक ही फैमिली के हैं, अंदर हैं, तो फिर ए के भी 3 सिबलिंग्स हैं बी सी डी, और बी के भी 3 सिबलिंग्स हैं ए सी डी, और सी के भी 3 सिबलिंग्स हैं और डी के भी 3 सिबलिंग्स हैं। सो ये 4 बच्चे एक ही फैमिली के अंदर है। सो देयर इज वन फैमिली विच हैज 4 किड्स। इफ देयर इज वन फैमिली विच हैज 4 किड्स, टोटल नंबर ऑफ किड्स हो गए 4। मूविंग फॉरवर्ड, द रेस्ट हैड नो सिबलिंग। बाकी बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई भाई बहन नहीं है, कोई सिबलिंग नहीं है, यानी कि वो सारे एक एक सिंगल चाइल्ड है। सो बाकी कितनी फैमिलीज हैं सिंगल चाइल्ड वाली, ये हमें नहीं पता। सो अननोन नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जिनके सिंगल चाइल्ड है। सिंगल चाइल्ड का मतलब है इनका कोई सिबलिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्लियरली बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस पूरे इस पूरे ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 48। ठीक है, 48 चिल्ड्रन वेंट ऑन अ पिकनिक। सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस पूरे ग्रुप में है 48। अगर 48 टोटल नंबर दिया हुआ है और उसमें ये पहले 3 नंबर्स हमें गिवन है, तो ये जो अननोन नंबर है ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले 3 नंबर्स को ऐड कर लो, 6 + 9 + 4, वो आ गए 19। फिर 19 में तुम कितना ऐड करोगे तो 48 आएगा। तो व्हाट डू यू डू, 48 में से माइनस कर दो 19, यू गेट 29। अच्छा, अब कौन से नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 आएगा? तो 29 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 29 फैमिलीज ऐसी हो गई जिनका 1 चाइल्ड ईच है। 1 चाइल्ड ईच का मतलब है कि उनका उनका नो सिबलिंग है। सो अगर 29 फैमिलीज का 1 चाइल्ड ईच है, टोटल चिल्ड्रन हो गए 29। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी फैमिलीज वेंट ऑन द पिकनिक। अगर तुम इस डेटा को ऐड कर लो तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज ऑन द पिकनिक आ जाएगा। 3 + 3 + 1 + 29, that's going to be 36. So 36 families went on the picnic. चैलेंजिंग सवाल है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें परेशान होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको मैसअप करते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लॉजिक इन्वॉल्व। वंस अगेन इफ यू आस्क मी भाई इस सवाल की कैटेगरी क्या है, तो इसकी कैटेगरी है लॉजिक वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है गाइस, लॉजिक वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला सवाल, अगला सवाल है भाई, वसीम इज ए मैकेनिक who gets a certain number of generators to repair every week. He calculates the leftover generators per week by the equation G is equal to 25 minus 2D.
where G is the number of generators left and D is the number of days worked. In the equation above, what does the number 25 represent? अच्छा, अब तुम्हें जो G की equation दी हुई है ना, first of all you need to understand कि equation दी हुई क्या है. Equation तुम्हें ये दी हुई है कि भाई G is equal to 25 minus 2D. और G है क्या? G is the number of generators left. Clearly लिखा हुआ है G is the number of generators left. ठीक है. सो आप क्या करेंगे? जी को आप लेबल कर देंगे, दिस इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट. ये वो जनरेटर्स हैं जो आपने अब तक रिपेयर नहीं किए. डी क्या है? डी इज द नंबर ऑफ डेज वर्कड. डी इज द नंबर ऑफ डेज वर्कड. अब तुमसे वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि भाई ये जो नंबर 25 है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. अच्छा, अब इस सवाल को टैकल करने के दो तरीके हैं गाइस. पहला तरीका तो ये है कि तुम डी की ना दो तीन वैल्यूज पुट कर लो. फॉर एग्जांपल, डी की जगह पे तुम पहले ज़ीरो प्लग इन करो. यानी कि नंबर ऑफ डेज वर्क अगर ज़ीरो है तो जी की वैल्यू क्या आ रही है? तो व्हेन यू प्लग इन डी एज ज़ीरो यू कैन सी जी इज 25. यानी कि जो नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट हैं वो 25 है. यानी कि जब तुम 0 दिन काम कर रहे हो तो 25 जनरेटर अभी तक रिपेयर नहीं हुए, 25 जनरेटर अभी तक बाकी हैं. फिर अगर तुम एक दिन काम कर रहे हो, डी की वैल्यू डाल दो 1. अगर तुम एक दिन काम कर रहे हो, डी की जगह 1 प्लग इन करो तो जी आ जाएगा 23. तो अब 23 जनरेटर्स बाकी हैं. फिर डी की जगह तुम 2 प्लग इन करो तो जी आ जाएगा 21. यानी कि बेसिकली जब तुम एक दिन एक्स्ट्रा काम कर लेते हो तो दो जनरेटर्स लेफ्ट कम हो जाते हैं. यानी कि पहले 25 जनरेटर्स लेफ्ट थे, अब 23 जनरेटर्स लेफ्ट हैं. यानी कि दो जनरेटर्स तुमने रिपेयर कर दिए. सो बॉटम लाइन ये है कि एवरी डे तुम दो जनरेटर्स रिपेयर कर रहे हो. नोटिस करो, अगला जब एक दिन गुजरता है तो जनरेटर्स लेफ्ट मजीद 2 से डिक्रीज हो जाता है. 2 से डिक्रीज हो रहा है ये. ठीक है. चाहो तो यहाँ पे -2 लिख दो. जस्ट रिमेंबर ये 2 से डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो जब एक दिन गुजरता है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स लेफ्ट 2 से डिक्रीज हो जाता है. यानी कि बेसिकली तुम दो जनरेटर्स रिपेयर कर चुके होते हो. फिर एक दिन और गुजरता है, तुम दो दो जनरेटर्स और रिपेयर कर चुके हो. तो यहाँ पे सवाल में तुमसे दो चीजें पूछ सकते हैं. या तो वो पूछेंगे कि बताओ टू क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो पूछेंगे कि 25 क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है. टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स दैट यू आर रिपेयरिंग एवरी डे. टू इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स दैट यू आर रिपेयरिंग एवरी डे. यानी कि आंसर डेल्टा, अगर तुमसे टू की वैल्यू मांगे. और अगर तुमसे पूछे 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25 इज द नंबर ऑफ जनरेटर्स दैट यू हैड व्हेन यू हैड वर्कड फॉर 0 डेज. जब तुमने 0 डेज काम किया था तो तुम्हारे पास 25 जनरेटर थे. यानी कि ये स्टार्टिंग नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं जो तुम्हें रिपेयर करने थे. तो 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 इज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ जनरेटर्स. इट इज द इनिशियल नंबर ऑफ जनरेटर्स. इनिशियल नंबर ऑफ जनरेटर्स. तो क्वेश्चन को अगर ऑप्शंस को देखो, 25 क्या है? 25 इज द जनरेटर्स टू वर्क ऑन एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक. स्टार्टिंग नंबर ऑफ जनरेटर्स. ठीक है गाइज, आगे बढ़ जाते हैं. अच्छा जी, अगला सवाल. वसीम इज ए मैकेनिक हु गेट्स सर्टेन नंबर ऑफ जनरेटर्स टू, ये सॉरी ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 7. एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 the number of students in a college is 850. If the number increases by 2.25% every year, how many students will there be at the end of 2012? अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? इसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ये एक चैप्टर है, लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. लीनियर ग्रोथ तब होती है जब एवरी ईयर या एवरी पीरियड सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा होता है. और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब एवरी ईयर या एवरी पीरियड सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा होता है. ठीक है. सो यहाँ पर सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स ये सवाल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है. ठीक है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सवाल है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के सवालों के अंदर एक फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू, मैं तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवा दूंगा तो ये सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा. फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू x नॉट 1 प्लस r टू द पावर x. ठीक है जी. y इज इक्वल टू x नॉट
1 + r⁴ यहाँ पे x नॉट क्या है? x नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, x नॉट इज द इनिशियल अमाउंट, और r क्या है? r इज द रेट ऑफ चेंज और द रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है भाई। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगर r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये ग्रोथ फंक्शन होगा, लेकिन अगर r की वैल्यू 0 से छोटी होगी यानी कि नेगेटिव होगी तो फिर ये डीके फंक्शन होगा। ठीक है, सो दिस कुड बी अ ग्रोथ फंक्शन, इट कुड बी अ डीके फंक्शन। तो सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग ये फॉर्मूलाज कॉपी कर लो। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि ये सॉल्व कैसे करना है। ऑल राइट, सॉल्व कैसे करना है? अब सीधा सीधा हमने ये फिगर आउट कर लिया कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सवाल है और हमें इसका फंक्शन बनाना है। फंक्शन कैसे बनाएंगे? फंक्शन की हमारे पास इक्वेशन है y = x0 1 + r⁴x। अच्छा, x नॉट क्या है? इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट इस सवाल में क्लियरली गिवन है 850। 1 + r, रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? सवाल में क्लियरली गिवन है, रेट ऑफ इंक्रीज है 2.25%। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड है 12 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 2000 स्टार्टिंग ईयर था और 2012 एंडिंग ईयर है, यानी कि 12 साल के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी y = 850। 1 + 2.25% को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, डेसिमल 2 दफ़ा लेफ्ट पे जाएगा तो ये बन जाएगा 0.0225 पावर 12। अब 1 और इसको ऐड कर दो 0.0225 का, तो ये बन जाएगा 850 ब्रैकेट ओपन 1.0225 पावर 12। तो ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फंक्शन आ गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फंक्शन आ गया। टैली कर लो कौन से ऑप्शन में ये गिवन है। ऑप्शन डी, डेल्टा, दैट्स द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। फंक्शन जो मैंने उसकी थियोरी लिखवाई है वो कॉपी कर लेना, सो दैट दिस इज क्लियर क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। बाय द वे, तुम में से कुछ स्टूडेंट्स शायद ये जानना चाहेंगे जो पिछला सवाल मैंने कराया था, बिकॉज मैं तुम्हें हर सवाल की कैटेगरी बता रहा हूँ। उसका तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर सवाल में तुम्हें मजीद प्रैक्टिस चाहिए या तुम्हें ये समझ नहीं आया, बिकॉज आज मैं बैठ के ये चैप्टर तो नहीं पढ़ा रहा, ऑब्वियसली इस चैप्टर की कुछ बैकग्राउंड थियोरी भी है। वो बैकग्राउंड थियोरी मैं तुम्हें नहीं बताई हुई, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और वंस अगैन, मैं अपनी मर्जी का सवाल सॉल्व नहीं कर रहा, मैं वो सवाल सॉल्व कर रहा हूँ जो आईबीए ने दिया था। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसके लिए कुछ बैकग्राउंड थियरी तुम्हें आनी चाहिए। सो अगर तुम्हें नहीं आती और तुम्हें इस चैप्टर का नाम भी मालूम पड़ जाता है कि हाँ यार ये चैप्टर है जिसमें मुझे मजीद मेहनत करने की ज़रूरत है, तो तुम उसके क्वेश्चंस ऑनलाइन निकाल लोगे। सो ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये सैट में बहुत कॉमनली आता है और इसका नाम है इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्युएटिंग लीनियर मॉडल्स। इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्युएटिंग लीनियर मॉडल्स, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये बड़ा कॉमन चैप्टर है, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लीनियर ग्रोथ। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जो कैटेगरी है, वर्ड प्रॉब्लम्स की कैटेगरी हमने रैप अप कर दी। अगली जो कैटेगरी है वो है एल्जेब्रा। होपफुली एल्जेब्रा स्टूडेंट्स को थोड़ी सी आसान लगती है, बिकॉज वो इक्वेशन बनी बनाई दी हुई होती है, आपने सॉल्व करनी होती है। ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, एल्जेब्रा का पहला सवाल। इस सवाल में दिया हुआ है भाई x + 1/x = 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x - 1/x। अच्छा, अब इस सवाल को करने के लिए मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय द रेगुलर मेथड, बट जनरली अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो मैं एडवाइस करूंगा कि यार टाइम ज़ाया मत करो, यू यूज द बैकडोर अप्रोच। ठीक है, बैकडोर अप्रोच इस्तेमाल करें, यानी कि आप
जुगाड़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। क्या जुगाड़ इस्तेमाल करेंगे? आई स्ट्रांगली एडवाइस के इस सवाल में आप सीधा सीधा आंसर ऑप्शंस प्लग इन करके ट्राई करें। तो सवाल में दिया हुआ है भाई x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो तुम क्या करो, ऑप्शन ए ट्राई करो। आगे आगे तुमसे पूछ रहे हैं भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। अच्छा अच्छा, सॉरी, आंसर ऑप्शंस ना ट्राई करो, माय अपॉलॉजीज। इसमें इसमें तुम्हें ये सोचना है, सो दो दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच ये कि तुम्हें ये सोचना है कि यार मैं x की जगह कौन सा ऐसा नंबर डालूंगा जिस पे रिजल्ट 2 आ जाएगा। सो अब अगर तुम रैंडमली नंबर सोचना शुरू करो कि मैं x की जगह 3 डाल देता हूँ, तो 3 डालोगे तो वो बन जाएगा 3 + 1/3। तो वो तो 3 से आगे निकल जाएगा बिकॉज 3 में कुछ ऐड हो रहा है और तुम्हें तो रिजल्ट 2 चाहिए। तुम x की जगह 2 डाल दोगे तो 2 + 1/2 वो भी 2 से आगे निकल जाएगा। तुम x की जगह 10 डाल दोगे तो हो जाएगा 10 + 1/10 वो भी 2 से आगे निकल जाएगा, 10 से भी आगे निकल जाएगा। सो द ओनली नंबर दैट यू थिंक यू शुड ट्राई इज 1। जब तुम x की जगह 1 ट्राई करोगे, x की जगह 1 ट्राई करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/1 दैट्स 2। अगर तुम्हें ये क्लिक कर जाता है कि भाई हाँ x की वैल्यू तो 1 है, फिर तुमसे मांग रहे हैं कि ये निकाल के दिखाओ भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। तो वो x की जगह पे 1 प्लग इन करोगे, ये हो जाएगा 1 - 1/1 दैट्स गोइंग टू बी 1 - 1 दैट्स गोइंग टू बी 0। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0 विच इज आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, सो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। दूसरा सवाल, दूसरा मेथड इस सवाल को करने का, नॉर्मल नॉर्मल अप्रोच, रेगुलर अप्रोच, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच। ठीक है जी, वो क्या होगी? आप सिंपली, एक आपके पास एक इक्वेशन है, एक सिंगल इक्वेशन है जिसमें एक सिंगल अननोन है x, तो आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मेथड 2। कैसे निकालेंगे? एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है, वेरी इजी टू फाइंड आउट। पहला काम तो ये करो, चूंकि तुम्हें इसमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक डिनोमिनेटर दिया हुआ है, हो सकता है कि तुम उस डिनोमिनेटर की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो। कोशिश ये करो कि उस डिनोमिनेटर से जान छुड़ा लो। कैसे जान छुड़ाओगे? पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, गेट रेड ऑफ द डिनोमिनेटर। जब पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली टर्म हो जाएगी x × x दैट्स x²। दूसरी टर्म में x डिनोमिनेटर का और ऊपर वाला x जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैंसिल होकर सिर्फ 1 बच जाएगा। और थर्ड टर्म हो जाएगी 2x। तो तीनों टर्म्स को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 2x को लेफ्ट साइड पे ले आओ, तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 के तुम्हें फैक्टर्स निकालने हैं, 1 के फैक्टर्स आते हैं 1 and 1। ठीक है जी, मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की जुगाड़ आपको क्लासेस में सिखाई है। आपको बीच में -2 चाहिए, तो आप सीधा सीधा -1 एंड -1 ले लेंगे। तो x की पहली वैल्यू क्या आएगी, इसका साइन चेंज कर देंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी +1, और इसका भी साइन चेंज कर देंगे तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी +1। सो x की दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, +1 और +1। जब x की वैल्यू तुमने निकाल ली, अब तुमसे कह रहे हैं कि भाई x -1/x निकाल कर दिखाओ। x की वैल्यू 1 है तो तुम करोगे 1 - 1/1 दैट्स गोइंग टू बी 1 - 1 दैट्स गोइंग टू बी 0। सो वही आंसर आ जाएगा नॉर्मल अप्रोच से। और नॉर्मल अप्रोच भी बहुत लेंदी नहीं है, बट अगर तुम्हें आंसर ऑप्शंस वाली अप्रोच यानी कि प्लगिंग इन वाली अप्रोच क्लिक कर जाती है कि भाई x की जगह कौन सा नंबर प्लग इन करना है, तो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू बी क्विकर। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अलजेब्रा का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ x will satisfy the requirement that x is less than equal to 5x plus 1 is less than equal to 4x plus 5। सवाल ये कह रहा है कि x की कितनी ऐसी इंटीजर वैल्यूज है। इंटीजर का मतलब आई एम होपफुल तुम लोगों को पहले से पता है, इंटीजर का मतलब है होल नंबर। सो x की कितनी इंटीजर वैल्यूज ऐसी हैं जो इस पूरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि इस पूरी इनइक्वालिटी को ब्रेक कर लो। तो तुम्हें दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 1 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 5। तुम क्या करोगे? जब भी तुम्हारे पास, मैं अगली स्क्रीन पे तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ, जब भी तुम्हारे पास a इज लेस देन इक्वल टू b इज लेस देन इक्वल टू c लिखा हुआ आ जाए तो तुम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। a इज लेस देन इक्वल टू b पहला पार्ट, एंड b इज लेस देन इक्वल टू c दूसरा पार्ट। दो पार्ट्स में तुम इसको ब्रेक कर सकते हो।
ठीक है, तो यही सेम रूल मैं अप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो मैं इसको ब्रेक करूंगा, फर्स्ट टर्म इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड टर्म एंड सेकेंड टर्म इज लेस देन इक्वल टू थर्ड टर्म। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा 4x और यहाँ पर आ जाएगा -1। साइड्स तुम फ्लिप करोगे तो इनइक्वालिटी भी फ्लिप हो जाएगी, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -0.25, -0.25 से बड़ा है x। अच्छा, अब सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, 4x को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x 4 से छोटा है या इक्वल है। सो अगर x 0.25 -0.25 से बड़ा है और 4 से छोटा है या इक्वल है, सो बेसिकली तुम्हें अब ये देखना है, ये गिनना है कि कितने ऐसे इंटीजर्स हैं, कितने ऐसे होल नंबर्स हैं जो इन दोनों नंबर्स के दरमियान लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो -0.25 से बड़ा पहला इंटीजर आएगा 0, अगला इंटीजर आएगा 1, अगला इंटीजर आएगा 2, अगला इंटीजर आएगा 3 और आखिरी इंटीजर आएगा 4। सो ये 5 इंटीजर्स ऐसे हैं जो तुम्हारी रेंज में लाई कर रहे हैं। तुमसे यही पूछ रहा है कि भाई कितने इंटीजर्स ऐसे हैं, 5 इंटीजर्स ऐसे हैं, यानी कि तुम्हारा आंसर हो गया ऑप्शन बी 5। ठीक है, सो ये अलजेब्रा का सवाल हो गया, बट नोटिस करो मैंने कोशिश ये की है कि हम स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करें। ठीक है, सो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स फंसे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें तीन तीन अननोन्स हैं, और जब तीन अननोन्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब क्या करें। ठीक है, सो इसमें तुम्हें गिवन क्या है, इसमें तुम्हें गिवन है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। और आगे तुम्हें गिवन है कि भाई x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 80। ये दो चीजें तुम्हें गिवन है। ठीक है, और तुमसे कह रहे हैं कि कुछ और निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस जेड। पहला काम तो ये करो कि जो पहली वाली इक्वेशन है ना, इसमें से x प्लस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ के z को राइट पे ले जाओ। सो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी -z। अब एक काम करो, y प्लस जेड निकाल के दिखाओ, तो y प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी -x, x को अगर राइट साइड पे ले जाओगे। और अब एक काम करो, x प्लस जेड की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी -y। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है भाई कि यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, let me just change the color, you need to find the value of x plus y multiplied by y plus z मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस जेड। इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अच्छा, कैसे निकालोगे भाई, एक्स प्लस वाई तुम्हें पता है कि नेगेटिव जेड के इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई की जगह तुम नेगेटिव जेड डाल दोगे। वाई प्लस जेड तुम्हें पता है नेगेटिव एक्स के इक्वल है, तो वाई प्लस जेड की जगह नेगेटिव एक्स डाल दोगे। और एक्स प्लस जेड तुम्हें पता है नेगेटिव वाई के इक्वल है, तो एक्स प्लस जेड की जगह नेगेटिव वाई डाल दोगे। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, 3 दफा माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो इवेंचुअली माइनस साइन आएगा, सो -x, y, z आ जाएगा। और x, y, z की वैल्यू तो 80 है, टॉप पे नजर आ रहा है हमें। अगर x, y, z की वैल्यू 80 है तो x, y, z की जगह 80 डाल दो, और बाहर नेगेटिव का साइन है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -80। ठीक है, बट चूंकि तीन तीन वेरिएबल्स हैं, काफी स्टूडेंट्स यहीं पे परेशान हो जाएंगे। सो बहुत लंबा सवाल नहीं है, कंफर्टेबली 90 सेकंड्स में तो बहुत आराम से कर सकते हो। डू नॉट लूज साइट ऑफ द एंड ऑब्जेक्टिव, तुमसे मांगा हुआ क्या है वो चीज मत कंफ्यूज कर देना। अगर तुम ये सोचने लगो कि यार मैं पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं z की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दैट्स गोइंग टू बी टू लेंथी, फिर तुम्हारा टाइम जाया हो। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये भी अलजेब्रा का सवाल है। अच्छा, ये सवाल रिलेटिवली आसान है, इसमें तुम्हें क्या दिया हुआ है, 999 मल्टीप्लाइड बाय 111 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स होल स्क्वायर।
अच्छा, होल स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 को भी स्क्वायर कर दो और एक्स को भी स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, और एक्स को स्क्वायर कर दिया तो वो आ गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब अगली चीज तुम क्या करो, अगर तुम थोड़ा सा वर्क स्मार्ट करो टाइम बचाने के लिए, तो ये 9 दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में ले जाओगे। जब 9 तुम दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में ले जाओगे, तो 9 वनजा एंड 9 ट्रिपल वनजा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रिपल वन इंटू ट्रिपल वन, यानी कि ट्रिपल वन स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ट्रिपल वन। सो ये नोटिस करो, आसान सवाल भी है और बगैर कैलकुलेटर के हो भी सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स हो सकता है यहाँ पे सिली मिस्टेक कर दें कि पहले वो ट्रिपल वन का स्क्वायर निकाल लें, दैट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। उल्टे हाथ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, सीधे हाथ पे दिया हुआ है ट्रिपल वन स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये कंफर्टेबली 60 सेकेंड्स में बहुत आराम से कर सकते हो, इवन लेस टाइम देन दैट, अगर तुम पेपर में पैनिक ना करो। अच्छा, अब अगले सवाल पे आ जाते हैं भाई। अगला सवाल है, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। वैसे तो ये सवाल अलजेब्रा का ही है, और इसमें एक्चुअल चीज जो तुम्हें आनी चाहिए वो पैराबोला को प्लॉट करना आना चाहिए। बट इस सवाल को आप फंक्शंस की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, बिकॉज इसमें रेंज का वर्ड आ रहा है। सो अलजेब्रा का सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, और फंक्शंस का सवाल है, ये तीनों चीजें इसमें मिक्स हो रही हैं। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑब्वियसली अलजेब्रा की ही कैटेगरी है। अच्छा, अब इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका ये है कि अगर तुम्हें जैसे कि हमने क्लासेस में ग्राफिंग सीखी है, अगर तुम्हें ये बात याद है कि यार y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बहुत ही आसान है। कैसे बनता है जी? हैप्पी फेस पैराबोला होता है, हमने डिस्कस किया था, इट्स हैप्पी फेस पैराबोला, और इसका टर्निंग पॉइंट होता है एट द ओरिजिन। सो आई जस्ट मेक दैट फॉर यू, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक काम करता हूँ मैं, ज़रा दो एक्सेस बना देता हूँ, बिकॉज इस सवाल को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो अगर तुम्हें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करने आता है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी अ हैप्पी फेस पैराबोला। उल्टे हाथ पे मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करूंगा, और सीधे हाथ पे मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लॉट करके दिखाऊंगा। सो वंस अगेन, ये ग्राफ आपने प्लॉट नहीं करना एग्जाम में, आपको सिर्फ इसका एक मेंटल इमेज होना चाहिए इफ यू वांट टू सेव टाइम, बिकॉज ये बहुत इजी ग्राफ है। मैंने आपको कुछ बेसिक ग्राफ्स कहे थे कि आपने याद करने हैं। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज वन ऑफ दोज वेरी सिंपल ग्राफ। हैप्पी फेस पैराबोला बनेगा, और इसका टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे होगा। ठीक है भाई, हैप्पी फेस पैराबोला बनेगा और इसका टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे होगा। ये आ गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब जब आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बनाएंगे, तो आप इसी ग्राफ को एज इट इज 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ये ग्राफ एज इट इज 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यही ग्राफ ऐसे बन जाएगा। 2 यूनिट्स अपवर्ड का मतलब ये है कि अब वो ओरिजिन पे टर्न करने की जगह ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर टर्न करेगा। और ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर का क्या मतलब हुआ, कि वो इंस्टेड ऑफ जीरो अब वो +2 पे टर्न करेगा। ठीक है भाई, सो इंस्टेड ऑफ जीरो अब वो जो ग्राफ है वो +2 पे टर्न करेगा। अगर ये तुम्हें बात समझ आ गई तो ये सवाल तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बट वंस अगेन यू शुड नो दिस ग्राफ। सो अगर जीरो की जगह ग्राफ +2 पे टर्न कर रहा है, ये इसका टर्निंग पॉइंट आ गया गाइज, +2। अब तुमसे पूछ रहे हैं भाई इस ग्राफ की रेंज बताओ। रेंज का क्या मतलब है? रेंज, ये बात याद रखना भाई, डोमेन एक्स के लिए होती है, डोमेन एक्स के लिए होती है, और रेंज वाई के लिए होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट डोमेन एक्स के लिए होती है और रेंज वाई के लिए होती है। सो यहाँ पे तुमसे रेंज पूछ रहे हैं, यानी कि वाई की वैल्यूज का पूछ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में, जो सीधे हाथ वाला ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसमें वाई की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज +2 के ऊपर ही हैं। सो y हमेशा +2 के ऊपर है, और एक पॉइंट पे y +2 के बराबर भी है, जो मिनिमम पॉइंट है।
सो या तो y +2 के ऊपर होगा या +2 के बराबर होगा, यानी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +2। सो अगर ये चीज़ तुमने पिक कर ली तो तुम्हारी डोमेन आ गई ऑप्शन डी, डेल्टा इज योर आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर गाइज, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब ये अलजेब्रा का सिंपल सवाल है, बट इसमें अंडर रूट मैंने इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है जी, अंडर रूट इन्वॉल्व हो गया। वंस अगेन आईबीए के 2022 का सवाल है, और इसमें सॉल्व करने के लिए आपने सिंपल स्ट्रैटेजी ये करनी है कि आपने अंडर रूट को एलिमिनेट करना है। सो एलिमिनेट करने के लिए तुम क्या करोगे कि अंडर रूट के बाहर एक +4 है, उस +4 को जब तुम राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, चलो पहले मैं +4 लिख देता हूँ, पहला स्टेप शो कर देता हूँ आपको। +4 को जब तुम राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो वो 8 में से माइनस हो जाएगा, और जब 8 में से माइनस हो जाएगा तो ऑब्वियसली 4 बच जाएगा, ठीक है। सो ये तुम्हारी सेकंड स्टेप ये हो जाएगा, 3x² +5/2 इज इक्वल टू +4, ठीक है। इसके आगे तुम क्या करोगे, इसके आगे तुम करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x² +5/2 इक्वल्स टू 16। जो लेफ्ट हैंड साइड पे अंडर रूट है और स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3x² +5 इज इक्वल टू 32। 5 को दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो 3x² आ जाएगा, 32 - 5 दैट इज 27। 3 से डिवाइड कर दोगे, x² की वैल्यू आ जाएगी 9, और फिर उसके बाद दोनों साइड पे अंडर रूट कर दोगे। अच्छा, यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा भाई, जब आप अंडर रूट करेंगे तो x की वैल्यू सिर्फ 3 नहीं आएगी, बल्कि प्लस एंड -3 आएगी। सो द आंसर हैज टू बी ऑप्शन ब्रावो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है जी ज्योमेट्री क्वेश्चंस। ज्योमेट्री के कुछ सवाल मैंने आपके लिए स्क्रीन पे डाले हुए हैं। पहला सवाल ज्योमेट्री का है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। अच्छा, यहाँ पर एक इस तरह के सवाल में मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि यार एक बेसिक सा रूल याद कर लो। बेसिक सा रूल क्या है कि जब भी तुम किसी फिगर की साइड और उसका एरिया और उसका वॉल्यूम कंपेयर करोगे तो उनका रेशो बड़ा फिक्स्ड है। साइड अगर 1 है तो एरिया 1 का स्क्वायर होगा और वॉल्यूम 1 का क्यूब होगा। 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और 1 का क्यूब भी 1 आएगा। और ये क्यों होता है? बिकॉज साइड अगर यूनिट्स में होती है तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होता है। तो ये बेसिक सा शॉर्टकट है। ऑब्वियसली आप इसकी लंबी वर्किंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट गाइस, मैं ये बताता चलूँ कि मैंने जितने भी सवाल सॉल्व कराए इनमें काफ़ी सारे सवाल ऐसे हैं जिसके मल्टीपल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी अभी जो मैंने तुम्हें पैराबोला बना के दिखाया, वो सवाल पैराबोला बनाए बगैर भी हो सकता था। सो सारे सवालों के मल्टीपल मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो मेथड बताऊँ जो ईजी टू डाइजेस्ट हो। गिवन कि भाई आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ चुके होंगे। सो मैं वो मेथड करा रहा हूँ जो इजी टू डाइजेस्ट हो और इजी टू एक्सप्लेन हो और विद इन 90 सेकेंड सॉल्व हो जाए। बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि और भी 2-3 मेथड्स हों जो विद इन 90 सेकेंड सॉल्व हो जाए, ठीक है। और हो सकता है कि उनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हों जो आपको ज़्यादा ईजी लगें, किसी को ये मेथड ईजी लगेगा, किसी को वो मेथड ईजी लगेगा, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है, ठीक है। सो सिमिलरली इस सवाल को करने के भी मल्टीपल तरीके हैं, बट मैं तुम्हें एक सिंपल सी जुगाड़ बता रहा हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प यू सेव टाइम। वरना तो मैं इस सवाल में नंबर्स भी सपोज कर सकता हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उसके बगैर भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो अगर साइड 1 है तो एरिया 1 होगा, वॉल्यूम 1 होगा। अगर साइड 2 है तो एरिया 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4, और वॉल्यूम 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अगर साइड 3 है तो एरिया 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और वॉल्यूम 3 का क्यूब हो जाएगा 27। सो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया है, ये शॉर्टकट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जब किसी भी फिगर की साइड को डबल करोगे तो एरिया उसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 टाइम्स,
और वॉल्यूम उसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स। जब भी किसी फिगर की साइड को डबल करोगे, एरिया 4 टाइम्स होगा, वॉल्यूम 8 टाइम्स होगा। जब भी किसी फिगर की साइड को ट्रिपल करोगे, 3 टाइम्स, तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा और वॉल्यूम 27 टाइम्स हो जाएगा। अगर मुझे ये रूल आता है तो मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। स्फीयर इज अ 3D सर्कल। सो दो स्फीयर्स हैं और मुझे ये बताया हुआ है कि मैं स्फीयर के रेडियस को डबल कर रहा हूँ। रेडियस को डबल कर रहा हूँ का मतलब है साइड को डबल कर रहा हूँ। और जब मैं रेडियस को डबल कर रहा हूँ, यानी कि मैं साइड को डबल कर रहा हूँ, तो इट्स वेरी क्लियर, अगर मैं इस रूल को देखूँ, कि जब भी साइड डबल होती है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा और वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर साइड डबल होगी तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर पहला वाला वॉल्यूम 1 है तो दूसरा वाला वॉल्यूम होगा 8। ठीक है, अगर पहला वाला वॉल्यूम 1 है तो दूसरा वाला वॉल्यूम होगा 8। और जब वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा तो तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। यहाँ पर तुम्हें परसेंटेज इंक्रीज निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100। ठीक है, सो अगर वॉल्यूम पहले 1 था और बढ़ने के बाद 8 हो गया, द इंक्रीज इज 7। सो तुम वैल्यू में नंबर्स पुट करोगे, फॉर्मूला में नंबर्स पुट करोगे, इंक्रीज इज 7 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इज 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 700%। लेकिन ये भी बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स इस सवाल में मिस्टेक करेंगे। वो कहेंगे अच्छा यार वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स होने का मतलब है 800%, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसका आंसर मार्क करेंगे डी, डेल्टा, बट दैट इज इनकरेक्ट, दैट्स अ ट्रिक आंसर, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस में हमेशा एग्जामिनर ये सोचता है कि यार ये स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है। स्टूडेंट 700% की जगह 800% मार्क करेगा, तो एग्जामिनर जब आपकी गलती को प्रीएम्प्ट करता है तो उसके हिसाब से वो इनकरेक्ट ऑप्शन भी इसी तरह से देता है। सो तुम्हारा आंसर करेक्ट 700% है। अगर तुमने सिली मिस्टेक कर दी तो तुम्हारा आंसर आएगा 800% और तुम डी मार्क कर दोगे, बट द राइट आंसर इज सी। अच्छा, यहाँ पर दो सवाल पूछे जा सकते हैं। या तो वो ये पूछेंगे कि भाई कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। परसेंट इंक्रीज तो मैंने निकाल के दिखा दिया, 700% है, एंड द राइट आंसर इज सी। ठीक है, दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भाई न्यू वॉल्यूम द न्यू वॉल्यूम is what percent of the original volume। अब अगर तुमसे वो ये पूछ लें कि भाई द न्यू वॉल्यूम इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इस केस में तुम करोगे न्यू वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम्स 100। तो न्यू वॉल्यूम है तुम्हारा 8, ओरिजिनल वॉल्यूम है 1 टाइम्स 100। इस केस में तुम्हारा आंसर आएगा 800%। सो 800% तब आएगा जब तुम्हारे सवाल की फ्रेजिंग ये होगी, और अगर एक्चुअल फ्रेजिंग जो सवाल में दी हुई है वो होगी तो फिर उस केस में तुम्हारा आंसर होगा 700%। इस सवाल में तुमसे परसेंटेज इंक्रीज मांग रहे हैं एंड हेंस योर आंसर हैज टू बी 700%। अच्छा भाई, ये 3D फिगर्स का सवाल था, यानी कि स्फीयर का सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है द रेडियस sorry, a rectangular mosaic is made up of square tiles of equal dimensions. The area of the mosaic is 360 centimeters square and it has a height of 24 centimeters. If the width of the mosaic is made up of 5 square tiles, what is the area of each tile? Interesting सवाल है, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम। और ज्योमेट्री के काफ़ी सवाल जो टेस्ट में आते हैं वो ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में आते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल पेपर सवाल है आईबीए का, 2022 का एक्चुअल सवाल है, तो रीसेंट सवाल है, यानी कि इस तरह के सवाल आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक रेक्टेंगुलर मोजाइक, एक डिजाइन बना रहे हो, एक मोजाइक बना रहे हो तुम, ठीक है। और उस मोजाइक को बनाने के लिए तुम स्क्वायर टाइल्स को यूज कर रहे हो, कुछ स्क्वायर टाइल्स तुम लगाओगे इसके अंदर, ठीक है। और तुम्हें ये बता दिया है कि भाई इस मोजाइक के अंदर जो हाइट है दैट इज 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हाइट 24 है। इसको हाइट ले लो, उसको ले लो, डजंट रियली, इसको हाइट ले लेते हैं, बड़ी साइड है ना। आई जस्ट शो यू। सो हाइट 24 है, ठीक है, और विड्थ अननोन है।
ठीक है जी। सो हाइट 24 है और विड्थ अननोन है, और तुमसे कहा हुआ है कि भाई इसका एरिया जो है दैट इज 360। एरिया जो है दैट इज 360। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू ब्रेथ इज 360, यानी कि 24 टाइम्स W इज 360। तो 360 को 24 से डिवाइड कर दो, विड्थ आ जाएगी 15। ठीक है भाई, विड्थ आ जाएगी 15, यानी कि तुमने इस रेक्टेंगुलर मोज़ाइक की विड्थ कैलकुलेट कर ली, जो कि तुम्हें नहीं पता थी, तुमने निकाल दी 15। आगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भाई इस विड्थ पे जब तुम स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हो, इस विड्थ पे जब तुम स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हो तो इस पे 5 स्क्वायर टाइल्स फिट आ रही हैं। अगर इस पे 5 स्क्वायर टाइल्स फिट आ रही हैं, तो 15 को अगर तुम 5 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दो, तो हर टाइल की लेंथ आ जाएगी 3। जब हर टाइल की लेंथ आ जाएगी 3, तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच टाइल, और ईच टाइल इज अ स्क्वायर टाइल। अगर स्क्वायर टाइल है तो अगर उसकी लेंथ 3 है तो उसकी विड्थ भी 3 होगी। तो एरिया ऑफ ईच टाइल हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच टाइल हो जाएगी 3 टाइम्स 3, दैट्स गोइंग टू बी 9। ठीक है जी, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये सवाल बड़ा चैलेंजिंग चैलेंजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, लंबी वर्किंग करते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि भाई lines parallel to the base divide each of the other two sides of a triangle shown in 10 equal segments. What percent of the area is gray? अच्छा, अब इस सवाल में करना क्या है? इस सवाल में करना ये है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, और तुम उसके बेस के पैरेलल मिड पॉइंट पे लाइन खींच दो, ठीक है, बेस के पैरेलल मिड पॉइंट पे लाइन खींच दो, तो ऊपर अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसी तरह के नीचे एग्जैक्टली 3 ट्रायंगल बनेंगे। जरा बना के देख लो। ठीक है, ऊपर अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो नीचे इसी तरह के एग्जैक्टली 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाऊं और उसको मल्टीपल स्ट्रिप्स में ब्रेक करूं, फॉर एग्जांपल ये पहली स्ट्रिप, दूसरी, तीसरी, जरा इसको देखते जाएं जी। पहली स्ट्रिप ये रही, दूसरी स्ट्रिप ये रही, तीसरी स्ट्रिप ये रही, और ये तीनों स्ट्रिप्स बेस के पैरेलल है। ठीक है। सो अब नोटिस करो, अगर ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, सो नीचे सेकंड रो में एग्जैक्टली 3 ट्रायंगल बनेंगे, 1, 2, 3। सो ऊपर वाली स्ट्रिप में एक ट्रायंगल था, सेकंड स्ट्रिप में 3 ट्रायंगल्स आ गए। नीचे वाली स्ट्रिप में अगर आप ऊपर वाले ट्रायंगल्स को रिवर्स करते जाएं, तो आप नोटिस करेंगे कि नीचे वाली स्ट्रिप में, थर्ड स्ट्रिप में 5 ट्रायंगल्स आएंगे। और ये मैं डायरेक्ट जुगाड़ बता रहा हूँ, एंड दैट्स समथिंग दैट यू शुड नो। और उसके नीचे वाली स्ट्रिप में अगर आप ट्रायंगल्स को फ्लिप करते जाएं, तो यू विल सी कि उसके नीचे वाली स्ट्रिप में कितने ट्रायंगल्स आएंगे भाई, बना के देख लें आप। तो आपको नजर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रायंगल्स आएंगे। सो बड़ा तुम्हें एक पैटर्न नजर आ गया सिंपल सा, कि यार पहली स्ट्रिप में अगर एक ट्रायंगल है, तो दूसरी स्ट्रिप में 3 होंगे, अगली स्ट्रिप में 5 होंगे, अगली स्ट्रिप में 7 होंगे। 2 2 से बढ़ रहा है, ऑड नंबर्स। ठीक है। अगर ये वाली बात तुम्हें समझ आ गई, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, अब तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें ये बताना है कि भाई अगर इस पूरे फिगर को 10 पोर्शंस में तुमने ब्रेक कर दिया है, तो कितना परसेंट ऑफ द एरिया इज ग्रे। अच्छा, अब कर, लेट्स ट्राई। सो इस फिगर को दोबारा से देखते हैं। अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका एरिया है 1, तो नीचे इस तरह के 3 ट्रायंगल्स होंगे, तो उसका एरिया हो जाएगा 3। फिर अगली लाइन में उस तरह के 5 ट्रायंगल्स होंगे, एरिया हो जाएगा 5। अगली लाइन में उस तरह के 7 ट्रायंगल्स हो जाएंगे, एरिया होगा 7। अगली ट्रायंगल में अगली लाइन में, अगली स्ट्रिप में 9 ट्रायंगल्स होंगे, अगली स्ट्रिप में 11 ट्रायंगल्स होंगे, नेक्स्ट स्ट्रिप में 13 ट्रायंगल्स होंगे,
15 ट्राइंगल्स होंगे, 17 होंगे और 19 होंगे। इन सबको ऐड कर लो। इनको ऐड करने की भी एक जुगाड़ है। जुगाड़ ये है कि अगर आपने कंसेक्यूटिव नंबर्स का शॉर्टकट पढ़ा हुआ हो तो इन सब का मिड पॉइंट निकाल लें। इस सब का मिड पॉइंट आएगा 10 और नंबर ऑफ टर्म्स है 10, मल्टीप्लाई कर दो 10 × 10 तो इन सब का सम आ जाएगा 100। या तो इसको नॉर्मल तरीके से, ओल्ड फैशन तरीके से ऐड कर लो, सारे नंबर्स को 1 3 5 7 9 सारे नंबर्स को ऐड कर लो ओल्ड फैशन तरीके से, या शॉर्टकट लगा लो कि भाई मिड पॉइंट 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, मल्टीप्लाई कर लिया 100 आ गया। सो बेसिकली इस पूरे फिगर का एरिया हो गया 100। अगर मैं टॉप वाले ट्राइंगल का एरिया सपोज कर रहा हूँ 1, मैंने टॉप वाले ट्राइंगल का खुद से एरिया सपोज कर लिया 1, तो पूरे फिगर का एरिया हो गया 100। अच्छा, अब इसमें शेडेड रीजन का एरिया कितना है? सो टोटल एरिया तो हम निकाल चुके हैं 100। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। सो टोटल एरिया हम निकाल चुके हैं, दैट इज 100। अब शेडेड एरिया निकाल के देख लो। शेडेड एरिया कैसे निकालोगे? पहले वाले शेडेड रीजन का एरिया है 1, अगले शेडेड रीजन का एरिया है 5, अगले का एरिया है 9, देन 13, देन 17। वंस अगेन इसको ओल्ड फैशन तरीके से ऐड कर लो, या मिड पॉइंट लेके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45। तो अगर तुम पांचों नंबर्स को ऐड करोगे तब भी ये आएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा 45। ठीक है भाई, इन पांचों नंबर्स को ऐड करके देख लो। 13 + 17 हो जाएगा 30, 30 में 9 ऐड करोगे 39, 39 में 1 ऐड करोगे 40, और 40 में 5 ऐड करोगे 45। तो शेडेड एरिया आ गया 45, टोटल एरिया आ गया 100। तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई शेडेड एरिया कितना परसेंट है टोटल एरिया के। तुम्हें करना है शेडेड एरिया अपॉन टोटल एरिया टाइम्स 100, परसेंटेज आ जाएगी। शेडेड एरिया इज 45, टोटल एरिया इज 100 टाइम्स 100, आंसर आ गया जी 45%। ठीक है जी। सो अगर ये शॉर्टकट तुम्हें आता है जो मैंने सिखाया तो ये सवाल कर सकते हो। वंस अगेन यू कैन सी कि यार ये मुश्किल सवाल है, चैलेंजिंग सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शॉर्टकट नहीं पता और आईबीए ने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दे दिया। It's a challenging question to do in that time frame if you do not know this shortcut. अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी ज्योमेट्री का सवाल है। ठीक है जी। इसमें क्या दिया हुआ है? द सॉलिड in the diagram picture is formed of 4 identical cubes. The surface area of each of the cubes is 24. What is the surface area of the soil? अच्छा, एक काम करो यार, अगर ये 4 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं तो सबसे पहले क्यूब के सरफेस एरिया का तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। लेट्स डू दैट। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6L², और तुम्हें सरफेस एरिया बताया हुआ है 24। तो अगर 6L² बराबर है 24 के, तो L² हो जाएगा 24/6, दैट इज गोइंग टू बी 4, और L की वैल्यू आ जाएगी +-2। प्लीज रिमेंबर, L की वैल्यू आ जाएगी +-2। लेकिन चूंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो ऑटोमेटिकली L की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि जो एक क्यूब है उस क्यूब की हर साइड, हर डायमेंशन की लेंथ तुमने निकाल ली 2। ठीक है भाई। सो इट्स अ 2/2/2 क्यूब। अच्छा, अब ये जो तुम्हारे सामने फिगर बना हुआ है इसमें 4 क्यूब्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हैं, दो बराबर में और दो उसके टॉप में, 4 क्यूब्स स्टैक हुए हैं। सो अगर हर क्यूब की डायमेंशन 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। सो इस फिगर का की लेंथ हो जाएगी 4, विड्थ हो जाएगी 2 और हाइट हो जाएगी 4। और तुमसे कह रहे हैं कि इस फिगर का सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। ये क्यूबॉइड है। अच्छा, अब क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए गाइस। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB + 2LH + 2BH। अच्छा, 2LB, L × B हो जाएगा 4 × 2, दैट्स 8, +2LH, L × H हो जाएगा 4 × 4, दैट्स 16, +2 × BH, BH हो जाएगा 2 × 4, दैट्स 8। तुम्हारा आंसर आ जाएगा गाइस 16 + 32 + 16। तो ये ऐड कर लो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 64।
द आंसर हैज़ टू बी बी। वंस अगेन इस सवाल के और मेथड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा क्यूब और क्यूबर्ड के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। क्योंकि तुम में से कुछ स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे, तो मैंने मज़ीद शॉर्टकट्स डिस्कस नहीं किए, मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला के थ्रू करा दिया, और ये भी कंफर्टेबली तुम विद इन 90 सेकेंड्स आराम से कर सकते हो। बस तुम्हें ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, बट डेफिनेटली इफ़ यू नो द शॉर्टकट्स यू कैन सेव अ बिट ऑफ टाइम ओवर हियर। ठीक है जी। सो ये हमारा कवर हो गया भाई ज्योमेट्री। अच्छा, मैंने तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट एरियाज करा दिए गाइस। मैंने करा दिया तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स, मैंने करा दिया अलजेब्रा, और मैंने करा दिया ज्योमेट्री। ठीक है। मैंने आज का सेशन 90 मिनट्स का प्लान किया था, थोड़ा सा टाइम एक्सीड हो रहा है, बट व्हाट आई विल डू इज कुछ सवाल हम और देख लेते हैं। ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू इज, अगर आप चाहते हैं कि भाई इस तरह का कोई मजीद सेशन करवा दिया जाए, 2022 के पास पेपर्स करवा दिए जाएं, या 2023 के पास पेपर्स करवा दिए जाएं, या 2022 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक करवा दिया जाए, या कोई एक स्ट्रैटेजी दे दी जाए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा कॉमनली आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस कम कॉमनली आते हैं। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे स्टूडेंट्स बहुत रेगुलरली आके अब आजकल ये पूछ रहे हैं कि जी हमने प्रेपरेशन नहीं की, बता दें हम 30 डेज में प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं, 30 डे का प्लान क्या है, या हम 20 डेज में प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं, या 40 डेज में प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं। आज आज की डेट से अगर आप देखें तो आईबीए के टेस्ट के लिए आपके पास 30-35 दिन बाकी हैं, दैट्स इट। ठीक है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुमने अब तक प्रेपरेशन नहीं की और तुम 30 डेज में सारी चीज़ें क्रैम करने की कोशिश करो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट वेरी फार। उसकी वजह यह है कि तुम हर टॉपिक को पढ़ो, हर टॉपिक की सारी वेरिएशंस करो, पास पेपर्स करो, दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग बिट। सो आइडियल स्ट्रैटेजी 30 डेज में, चाहे तुमने पहले प्रेपरेशन की हो या ना की हो, अब जो तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम मौजूद है, उसके लिए आइडियल स्ट्रैटेजी क्या है कि तुम ए इंपॉर्टेंट एरियाज फिगर आउट करो कि यार टेस्ट में कौन कौन से एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसके सवाल ज़्यादा कॉमनली आते हैं। और जब तुम वो इंपॉर्टेंट एरियाज फिगर आउट कर लेते हो कि हाँ यार इस चैप्टर के इतने सवाल आते हैं, इसके इतने सवाल आते हैं, ये चैप्टर ज़्यादा कॉमनली आते हैं, ये चैप्टर्स कम कॉमनली आते हैं, फिर तुम उसकी प्रेपरेशन टारगेट करके पहले कर लो। सोचो ना यार, अगर तुम्हारे पास, बिकॉज आईबीए का टेस्ट सिलेबस फिक्स तो नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास लेट्स सपोज एक एक बॉल पार्क फिगर कहता हूँ कि जी मैथ के 30 to 40 टॉपिक्स हैं जो तुम्हें कवर कर, ठीक है, और तुम कहते हो कि यार मैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले 10 कर लेता हूँ, कौन से, जिससे मेरे 70 to 75% क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर कवर्ड फॉर अ बिग चंक ऑफ द क्वेश्चंस। वो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स पहले कर लो। ऑब्वियसली अगर टाइम बच जाए तो तुम बाकी टॉपिक्स भी देख सकते हो, बट डोंट डू दीज टॉपिक्स रैंडमली। इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स पहले कर लो। सेकेंडली, जो टॉपिक्स बच गए उसका अगर टाइम है तो कर लो, वरना फुल लेंथ टेस्टिंग करो, पास पेपर्स करो। बिकॉज इस मोमेंट पे आखिरी एक महीने में, लास्ट 15-20 डेज में जो चीज़ तुम्हें मोस्ट हेल्प करेगी वो तुम्हारी टाइम्ड प्रैक्टिस होगी। तुमने टॉपिक पढ़ लिया, तुमने टाइम प्रैक्टिस नहीं की, एग्जाम में तुम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, बिकॉज तुमसे क्वेश्चंस ही बहुत सारे छूट जाएंगे। सो मेक श्योर कि तुम टाइम्ड प्रैक्टिस करो, आईबीए के पास पेपर्स करो, रीसेंट पास पेपर्स करो, 2022 के करो, 2023 के करो। अच्छा, एक और कॉमन मिसकंसेप्शन, स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज है सर जी, पास पेपर्स पास पेपर्स पास पेपर्स। पास पेपर्स करना बहुत स्ट्रांगली एडवाइजेबल है। इट शोज यू अ ट्रेंड कि भाई किस तरह के सवाल आ रहे हैं, इसीलिए हमने ये पास पेपर्स डिस्कस किए हैं। लेकिन आईबीए की अपनी वेबसाइट पे पास पेपर्स नहीं है, मौजूद हैं लेकिन बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। वो करना भी मुनासिब है, लेकिन बिल्कुल एंड में, जब तुमने रीसेंट वाले सारे कर लिए और तुम्हारे पास कुछ और करने को नहीं बचा हुआ। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर्स हैं वो रीसेंट वाले हैं, सो रीसेंट वाले पास पेपर्स पहले करें। 2023, 2022, 2021 आप लोगों की क्लासेस में आपको पास पेपर्स दिए जा रहे हैं, वो पास पेपर्स आपने पहले करने, टाइमिंग के साथ करें, अपना स्कोर नोट डाउन करें, और कोशिश करें कि जब सेकंड पास पेपर अटैम्प्ट करें तो पहले पास पेपर पे इंप्रूवमेंट आए। जब 10 पास पेपर्स अटैम्प्ट करेंगे और हर पेपर में दो दो पॉइंट्स की भी इंप्रूवमेंट, दो दो सवाल की भी इंप्रूवमेंट आप ले आते हैं, तो 10 पेपर में आप 20 सवालों की इंप्रूवमेंट लाएंगे। दैट्स गोइंग टू बी एक्स्ट्रॉर्डनरी। ठीक है, बट ऑब्वियसली इस तरह से इंप्रूवमेंट काम नहीं करती है, शुरू में ज़्यादा आती है, बाद में थोड़ी सी कम आती है इंप्रूवमेंट, तो शुरू में उसको मैक्सिमाइज कर लें। ठीक है। सो दो चीज़ें मैंने बता दी गाइज, ए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर करें,
एंड बी मोस्ट रीसेंट पास पेपर्स अटेम्प्ट करना शुरू करें टाइमिंग के साथ। ठीक है। अच्छा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, बट मैंने चूंकि कुछ दो चैप्टर्स और भी प्रिपेयर किए थे, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि दोनों चैप्टर्स के सैम्पल क्वेश्चन तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें मालूम पड़ जाएगा जी किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है। एंड देन इफ यू वांट वी कैन डू अ सिमिलर सेशन नेक्स्ट वीकेंड होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो नंबर प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं गाइज। नंबर प्रॉपर्टीज वो सवाल हैं जिसमें तुमसे होल नंबर्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स, चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। सो नंबर प्रॉपर्टीज के सवाल की एक एग्जांपल तुम्हारे सामने है, और मैंने 4-5 क्वेश्चंस पेस्ट किए हुए हैं आगे जाके। ठीक है। सो पहला सवाल तो मैं ये दिया हुआ है कि भाई हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स लाई बिटवीन अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 8। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 8 के दरमियान कितने पॉजिटिव इंटीजर्स लाई करते हैं। ठीक है। वंस अगेन एक्चुअल सवाल है आईबीए का। अच्छा, अब तुम्हें याद होगा कि क्लासेस के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि यार तुम्हें अंडर रूट्स याद होने चाहिए फ्रॉम 1 to 5। तो 1 से लेके 5 तक अंडर रूट्स तुम्हें याद होने चाहिए। इफ़ यू मेमोराइज दोज तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि यार अंडर रूट 5 की वैल्यू है 2.23, ये तुमने याद किया हुआ है। लेकिन अंडर रूट 8 तो तुमने नहीं याद किया हुआ। अगर अंडर रूट 8 तुमने नहीं याद किया हुआ तो तुम अंडर रूट 8 को ब्रेक कर सकते हो। अंडर रूट 8 बन जाएगा 4 into 2, और 4 का अंडर रूट आता है 2, तो ये बन जाएगा 2√2। जब तुमने ये लिख दिया कि ये 2√2 बन गया, तो √2 की वैल्यू है 1.41। ठीक है, 1.414, उसको डबल करोगे तो 2.81 आ जाएगा। सो अंडर रूट 8 की वैल्यू आपने इन्फर कर ली, इज गोइंग टू बी 2.828। सो अंडर रूट 5 की वैल्यू तुम्हें पता है 2.23, और अंडर रूट 8 की वैल्यू तुमने इन्फर कर ली 2.828। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तुम ये नहीं भी करना चाहते, वन सेकंड, मैंने कहा ना कि यार बहुत सारे तरीके होते हैं सवालों को करने के लिए, तो मैं मेंटली बता सकता हूँ कि अंडर रूट 8 जो है ना वो 3 से कम होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। अगर अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो अंडर रूट 8 उससे कम होगा, तो 2.8 होगा या 2.7 होगा अंदाजे से। ठीक है, हमने देख लिया 2.8 आ रहा है। अब तुमसे कह रहे हैं कि यार अंडर रूट 5 और अंडर रूट 8 के दरमियान कितने इंटीजर्स हैं। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 8 के दरमियान कितने इंटीजर्स हैं। तो अंडर रूट 5 होता है 2.2, और अंडर रूट 8 होता है 2.8। इसके दरमियान कितने इंटीजर्स हैं? इसके दरमियान तो कोई भी इंटीजर नहीं होगा। 2.2 और 2.8 के दरमियान कितने होल नंबर्स हैं? इंटीजर्स का मतलब है होल नंबर्स। तो 2.2 और 2.8 के दरमियान कोई भी होल नंबर नहीं है। द आंसर इज 0। सो बहुत ही सिंपल सा सवाल। ठीक है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। एक सवाल और कर लेते हैं नंबर प्रॉपर्टीज का। ये सवाल देख लेते हैं, अच्छा सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल। एक्स की वैल्यू है π/4, और तुमसे कह रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैज द लार्जेस्ट वैल्यू। सो एक्स की वैल्यू तुम्हें बता दी π/4, और तुमसे पूछ रहे हैं कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जिसकी लार्जेस्ट वैल्यू। अच्छा, अगर तुम्हें ये बात पता है कि भाई पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 3.142। तुम 3.14 ले लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3.14 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। या तो तुम कैलकुलेट करो एग्जैक्ट, या तुम और थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दो यार, बिकॉज एग्जैक्ट वर्किंग की कोई खास ज़रूरत नहीं है इस सवाल में। अगर मैं 3.14 को 3 भी सपोज कर लूँ ना, तो 3/4 मुझे पता है 0.75 होता है। और आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी क्लास में सिखाई है शुरू शुरू में, मेंटल मैथ की स्ट्रैटेजी के, जब भी किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो पहले उसको हाफ कर लो और दोबारा हाफ कर लो। तो 3 का हाफ होगा 1.5, और 1.5 का हाफ होगा 0.75। तो अगर तुम 3.14 की जगह अप्रॉक्सीमेटली 3 ले लो, तो 3/4 हो जाएगा 0.75। सो एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली अप्रॉक्सीमेटली 0.75, और क्लोज निकालोगे तो 0.78 या 0.79 आ जाएगी। अच्छा, अब एक रूल हमने क्लास में और पढ़ा है, वो रूल है प्रॉपर फ्रैक्शंस का रूल। प्रॉपर फ्रैक्शंस का रूल क्या बताता है, मैं अगली स्क्रीन पे पहले रूल तो मैं लिख के समझा देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है गाइस, ये तुम लोग को आना चाहिए बिकॉज ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल तुम्हें ये बताता है कि अगर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इन तीनों नंबर्स में से सबसे छोटा x होगा और सबसे बड़ा x² होगा। सबसे छोटा x होगा और सबसे बड़ा x² होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू
वन से बड़ी नहीं है बल्कि जीरो और वन के दरमियान है, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जीरो और वन के दरमियान अगर एक्स की वैल्यू है, तो फिर एक्स से बड़ा एक्स स्क्वायर नहीं होगा बल्कि एक्स से छोटा एक्स स्क्वायर होगा, और अंडर रूट एक्स उससे बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल नंबर ले लूं 5 और उसका स्क्वायर करूं, तो स्क्वायर तो हमेशा बड़ा आता है। लेकिन जब मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लूं जीरो और वन के दरमियान, फॉर एग्जांपल 0.5, और उसको स्क्वायर कर दूं, तो उसका स्क्वायर 0.5 से बड़ा नहीं आएगा, 0.5 से भी छोटा आएगा, 0.25 आएगा। और जब मैं 0.5 का अंडर रूट ले लूंगा तो वो 0.5 से बड़ा आएगा। यानी कि जब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करता हूँ या क्यूब करता हूँ या पावर 4 करता हूँ, तो वो छोटा होते जाता है। और जब मैं उसको अंडर रूट करता हूँ या क्यूब रूट करता हूँ या फोर्थ रूट करता हूँ, तो वो बड़ा होते जाता है। अगर ये रूल मुझे पता है, तो अब यहाँ पे आई कैन सी एक्स इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर एक्स एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर एक्स एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो एक्स से छोटे होंगे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स पावर 4, ये सारे एक्स से छोटे होंगे। और एक्स से बड़ा होगा अंडर रूट एक्स और क्यूब रूट एक्स और फोर्थ रूट एक्स, ये सारे बड़े होंगे। तो इन सब ऑप्शंस में सबसे बड़ा कौन सा है? फोर्थ रूट ऑफ एक्स। और अगर तुमसे पूछ लें कि इन सब ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा एक्स पावर 4। ठीक है। सो ये मैंने तुम्हें एक सवाल और करा दिया। बाकी मैं आगे के कुछ सवाल थोड़े से स्किप कर देता हूँ नंबर प्रॉपर्टीज के। आखिरी कैटेगरी तो मैं दिखा देता हूँ। आखिरी कैटेगरी है मिसलेनियस मैथ। ये भी आईबीए के टेस्ट में आते हैं। वैसे तो खैर इसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, और वो जब तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे या पास पेपर्स कर रहे होगे या कोई मटेरियल गो थ्रू कर रहे होगे, तुम देखोगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी के सवाल हो गए, फंक्शंस के सवाल हो गए, एपीजीपी के सवाल हो गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल हो गए, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के सवाल हो गए, मेट्रिसेस हो गया, लॉगरिथम्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया। तो ये बहुत सारे, और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हो गया। तो ये बहुत सारे और मिसलेनियस मैथ के टॉपिक्स हैं जो आईबीए के टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है। नोटिस करो, ये सवाल तुम्हारे सामने प्रोबेबिलिटी का सवाल, ये सवाल तुम्हारे सामने ग्राफ्स का सवाल, ये सवाल तुम्हारे सामने पढ़ाऊंगा तो मालूम पड़ेगा, बट ये सवाल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है। सो ये सेट्स एंड वेन डायग्राम्स का सवाल। ठीक है। सो ये मिसलेनियस सवाल, इनमें से एक दो ट्राई कर लेते हैं गाइस क्विकली। एक सवाल कर रहा हूँ तो मैं प्रोबेबिलिटी का। देर आर 40 फिशेज इन अ पॉन्ड। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर फिश का प्लॉरल क्या है? तो फिश का प्लॉरल फिश भी होता है और फिशेज भी होता है, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी। फिश एंड फिशेज दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों प्लॉरल है फिश के। देर आर 40 फिशेज इन अ पॉन्ड। X of those are goldfish, while the remaining are yellow. 20 more goldfish are added to the pond, after which the probability of catching a goldfish doubles. What is the value of X? तो सवाल में तो मैं ये बता रहे हैं कि ओरिजिनली तुम्हारे पास 40 फिशेस थी ओरिजिनली, और उस 40 में से X गोल्डफिश थी। ठीक है जी, X गोल्डफिश थी और बाकी जो थी वो येलो थी। तो अगर X गोल्डफिश थी, तो रिमेनिंग हो जाएंगी, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट रिमेनिंग हो जाएंगी 40 - x, क्योंकि 40 में से अगर x निकाल दोगे तो 40 - x बच जाएगा। ठीक है। सो ये ओरिजिनल सिचुएशन है कि 40 गोल्ड फिश थी, सॉरी 40 टोटल फिशेस थी, जिसमें से x गोल्ड फिश थी और रिमेनिंग हो गई 40 - x। अब तुमसे कह रहे हैं 20 मोर गोल्ड फिश आर एडेड। अब तुमने गोल्ड फिश 20 और ऐड कर दी। लेट्स डू दैट। गोल्ड फिश में 20 ऐड कर दो। जब गोल्ड फिश में 20 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली टोटल भी 20 से बढ़ जाएगा। और अब तुमसे पूछ रहे हैं कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग अ गोल्ड फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग अ गोल्ड फिश डबल्स। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड फिश क्या थी, और न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड फिश क्या है? सो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड, अगर मैं ये 20 ऐड करने वाला स्टेप मिटा दूं, सो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फिश क्या थी? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फिश थी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी कि x/40। ये ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है। इसको आप चाहें तो P1 लेबल कर लें।
ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी को आप लेबल कर लें P1, ठीक है। और जो न्यू प्रोबेबिलिटी है, जब 20 गोल्ड फिश तुमने ऐड कर दी और टोटल में भी 20 ऐड हो गया, तो न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फिश हो गई x + 20/40 + 20, दैट्स 60। तो ये न्यू प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इसको P2 लेबल कर दो। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी गोल्डफिश पकड़ने की डबल हो गई, यानी कि P2 जो है वो P1 के मुकाबले में डबल है। सो P2 की जगह आप लिख देंगे x + 20/60 इज इक्वल टू P1 की जगह आप लिख देंगे x/40 और इसके आगे × 2, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 1s 2 20s, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 20x + 400 इक्वल्स टू 60x। 20x को सीधे हाथ पे ले जाओगे, 40x इज 400, सो x इज गोइंग टू बी 10। x की वैल्यू तुमने निकाल दी गाइस 10। तुमसे वही पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तुम्हारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, ब्रावो। ठीक है गाइस, एक आखिरी इंटरेस्टिंग सवाल तुम्हें और करवा देता हूँ तो तुम्हें एक फॉर्मूला सीखने को मिल जाएगा आज। सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, इसमें दिया हुआ है सेट ए हैज 17 मेंबर्स and set B has 19 members. If the set A union B has 26 members, calculate the number of members that are in set A but not in B. इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें A यूनियन B का फॉर्मूला आना चाहिए, और A यूनियन B का फॉर्मूला होता है A + B - A इंटरसेक्शन B। तो ये A यूनियन B का फॉर्मूला है गाइस। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला कॉपी कर लो। अच्छा, अब तुम्हें वैल्यूज के आगे बना, तुम्हें दिया हुआ है ए यूनियन बी हैज 26 मेंबर्स, तो ए यूनियन बी की जगह तुमने लिख दिया 26। लेट्स डू दैट। ए यूनियन बी की जगह तुमने लिख दिया 26। और ए हैज 17 मेंबर्स, ए की जगह लिख दिया 17। बी हैज 19 मेंबर्स, बी की जगह लिख दिया 19। और ए इंटरसेक्शन बी, ये तुम्हारा फिलहाल अननोन है, इसको तुमने कर दिया एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 26 इज इक्वल टू 17 + 19, दैट्स गोइंग टू बी 36 - x। x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि A यूनियन B तुमने निकाल लिया 10। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुमने A यूनियन B निकाल लिया 10, तो अब तुम वेन डायग्राम बना दो। दो सेट्स हैं A एंड B, दोनों का वेन डायग्राम बना दो, A एंड B, ठीक है। ये पहला सेट आ गया A और ये दूसरा सेट आ गया B। ए के एलिमेंट्स तुम्हें बताए हुए हैं क्लियरली, ए के एलिमेंट्स हैं 17 और बी के एलिमेंट्स तुम्हें बताए हुए हैं 19। और ए इंटरसेक्शन बी तुमने अभी अभी निकाल लिया 10। इंटरसेक्शन वो पोर्शन होता है जो दोनों का ओवरलैपिंग पोर्शन होता है, तो ओवरलैपिंग पोर्शन तुमने निकाल लिया 10। अगर ओवरलैपिंग पोर्शन तुमने निकाल लिया 10, तो अब ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये वो मेंबर्स होंगे जो ओनली ए में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। और ये राइट वाले वो मेंबर्स होंगे जो ओनली बी में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहे। ये कैसे निकालेंगे? दिस इज वेरी इजी। पहले लेफ्ट वाला नंबर निकाल लेते हैं। ए का टोटल दिया हुआ है 17, उसमें ओवरलैपिंग पोर्शन है 10, तो 17 - 10 कर लो, तो लेफ्ट वाला पोर्शन आ जाएगा 7। लेफ्ट वाला पोर्शन आ जाएगा 7। और सिमिलरली राइट वाला पोर्शन, बी का टोटल दिया हुआ है 19। 19 में से ओवरलैपिंग पोर्शन है 10, तो राइट वाला पोर्शन हो जाएगा 19 - 10, दैट्स 9। अब तुमसे सवाल में पूछ रहे हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर इन सेट ए बट नॉट इन बी। ऐसे मेंबर्स चाहिए जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। अगर ए में है और बी में नहीं है वो चाहिए, तो वो तुम्हारा आंसर आ गया गाइस 7। ठीक है। सो ये मैंने तुम्हें वेन डायग्राम्स का सवाल भी करवा दिया। आई होप यू हैड टाइम टू कॉपी इट। अगर तुम में से किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ रिव्यू करनी है, तो ऑटोमेटिकली ये जो हम सेशन कर रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज पे मौजूद है। उसकी रिकॉर्डिंग तुम वहाँ पे व्यू कर सकते हो, रिवाइंड फॉरवर्ड करके अपनी पेज पे देख सकते हो। अगर कोई फॉर्मूला तुम कॉपी नहीं कर पाए तो तुम उसको वहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और चूंकि मैंने जब क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने हर क्वेश्चन की कैटेगरी भी साथ साथ बताई है, तो यू कैन फिगर आउट कि यार मैं
इस कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और इस कैटेगरी में मैं वीक हूँ, मुझे इसकी मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जो कैटेगरीज हम आइडेंटिफाई करते हो कि तुम वीक हो, उसके सवाल निकाल के तुम मजीद प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम नोटिस करोगे इसके आगे एक और सवाल भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये फंक्शंस का सवाल है। बट चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं अभी ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस कर पा रहा। फंक्शंस का सवाल है, इसके आगे एक और सवाल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इवनली स्पेस्ड सीरीज का सवाल है, इसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है। सो आई हैड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस प्लान फॉर यू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेजॉरिटी कर ली हैं। कुछ हम टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं कर पाए, बिकॉज मैं आपको उसके साथ साथ मजीद प्रिपरेशन की एडवाइस भी दे रहा था। बट नॉट एन इशू। if you guys have any concerns, if you want to discuss anything further, आप यहाँ पे नीचे फीडबैक छोड़ सकते हैं और हम जो है वो या तो हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, या अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चाहेंगे कि भाई कोई चीज़ एक्स्ट्रा करा दी जाए, कोई गाइडेंस दे दी जाए, कोई प्रिपरेशन के हिसाब से प्लान बता दिया जाए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर ली जाए, सो वी कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है गाइज। सो आई होप दैट you do well in the IBA test. I hope that today's session was helpful for all of you. It was a learning experience for all of you. Maybe you learned some new formulas, maybe you learned some new shortcuts. हो सकता है तुम्हारी मैथ बहुत ही अच्छी हो और तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हो, लेकिन तुम्हें ये सीखने को मिल गया कि यार बैकडोर अप्रोच भी लगा सकते हैं सवालों के अंदर, जुगाड़ भी लगा सकते हैं। ये सीखने को मिल गया कि आईबीए के पेपर में टाइम सकर्स भी आते हैं, और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ अच्छी होती है वो कोशिश करते हैं कि यार हम सारे सवाल कर लें, और जब वो टाइम सकर पे अटकते हैं तो उनके एंड के क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो तुम्हें कुछ बेसिक बेसिक स्ट्रैटेजी समझ आ गई कि यार अपने आप को पूरे पेपर में पेस करें। पेस योर सेल्फ थ्रू आउट द टेस्ट, डू द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, डू द क्विक क्वेश्चन फर्स्ट, डू नॉट पैनिक। ठीक है। सो आई होप कि आपने आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा, एंड यू आर टेकिंग समथिंग बैक होम टू इम्प्रूव अपॉन योर IBA परफॉर्मेंस। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, वैसे तो हमारे फेसबुक पेज पे भी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो वो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन ऑलवेज रीच आउट, मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं। आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो हमारी टीम मुझ तक आपका मैसेज पहुंचा देगी, एंड वी कैन ऑलवेज कनेक्ट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।